Laraki. Bijane Usaki Muskana ko ujvala ora prasanada pravaka dekha hai, lekina Usaki Muskana ko merduta se ora pain herdaya mem kupakapa wrote hu dekana durlaba hai, kuiti ko isa taraha dekakara us akanaka kucha yada aya, larakium pahale apana janmadina nahim manati thim, lekina sokane ke bada, usak kahane parave apana janmadina manain lajam, una akalpani avarsam mem, hara janmadina paravaha laraki asadarana rupa se santa rahaji. Jaba apa USA's bada karang, to USA katham para aka halki muskana hogi, bilkalavesa hai jaza abi hai, USAN kuiti k munha se nikkel, fira se, sabdako spakalita rupa se najarandeja karadia, yaha sosakara ki laraki bahuda duki ti ora bakavasa kara rahiti, tisari laraki ne apain paravara ki laraki ko pita, ora madama ne aka savala bi puchain ki jahamada nahi mutai, nyaya tadura ki bada hai. Yadi apa vastava mem kumbana ke bear mem bada karana kahat hayam, ta apa eka laraki ke lai kumbana ke bear mem kes bada kara socket hayam, azes pahale, u sumida ti ki laraki jalda se jalda sati kara legi ora isa udasina ziningabo haveli ko koradegi, lekina kya sati karana aka hai, by jane bonhem sikoram. Usa laraki ke bagya ke lai, apain bagya ke lai, main bahuda hai saktihina mahasusa karata hum. Kuiti fira se akambita hokara kiriki se bahara dekha rahiti, isa bara bijane kucha nahim kucha nahim kaha, balki pitch mura ora kucha karain kikazisa karain laga, vaha bakara nahim raha sakatiti, usdara daki agara vaha bahuda bakara bathi rahi, to dunia ke bear mem sokane ora sinta karain se laraki ka muda karaba hojega, Shrimati Countess Sininga Eka Bahuda Hai Karmatha Mahila Hayam, Jaba Unhem Yaha Sitramila, to Unhan Sabase Pahale Apani Betty K Lai Patti Kunan Ki Kabara Lagam Ko Batai, Pradana Mantri Ki Patni Ki Prasansa Dekakara, Kai Paravara Vastava Mem Yahame, Jau Paravara Ka Dusara Beta, Solaha Salaka, Danam Kanam Se Bahara, Usak Pita Pankavam Ranka K Adakari Hayam, Kiana Paravara Ki Upapatni, Unnisa Sala Ki, Langari, Eka Upapatni T. Sana Paravara ka sabase chota beta, Pandraha sala ka, eka anka vala, Usaka pita kath darya ka eka setavani din vala doktarada, Usaka bara by pikil recorda ki suki mem duser nambara parada, Vaha eka adakari paravara mem peta wada, ora jaba vaha chota de tavaha visasa rupa se mahilaam ka saukinada. Vibana paravaram ki patnium eka ke bada eka deravahe para aim ora citram ko decane ke bada unaki amkam thori kekada hogaim. Azase koi farka nahim parada ki apa onda hayam ya apaki paravara mem baks paraperna nahim hayam. Jo mayan rakata hai vaha hai aka karana, kartavya ora apani patni ke prati vafadari. Unhem kuiti ka rupa pasanda hai, kamala ora kamajora, dikavati nahim, ke aradaperna nahim. Eka onda adami eka utkrista swabhava vikasita kara sakata hai. Unhan eka ak siksaka hon ke lai Shrimati Countess Zininga ki prasansa ki, jazes lagam ke saher garma hogai. Shrimati sana ko vida karain ke bada, vaha apain kamari mem vipasa gaim orakai kampanayam devara samp gai nama kardam ko dekha, ora unhem parasani mahasusa way. Tinam patnayam mem se Shrimati suna hai kuiti se sabesa dika santasta thim, kyanki kuiti janma se hai sundara thim ora apain yuva putra ki sundarata sambandi sakta apexam ko purna rupa se pura karati thim. Shrimati Countess Sininga ne sana paravara se prasida posta uthaya, ora jau paravara se posta apain dahin hatha se uthaya, danam ko talat hu, jai hakat hu. Sana balavda ke pita ora by danam hai nayayalaya mem adakari hayam, lekina usain kisi se puchatacha karain ko kaha, oha, surya paravara ki priya ora kankala mahila bahuda sahi nahim hai, jau paravara ka dusara beta apexakarta bihatara hai, lekina usaki upastiti bahuda achi nahim hai. Kuiti ka ulaka nahim karana, yaham taka ki kuiti ke asapasa ke safida kabutara bi yogya nahim hayam. Shrimati jau ne unak satha Shrimati suna ki taraha garmajosi se vyavahara nahim kia. Kuiti sabase bari beti hai, ora yaha sijinga mem betiam ki sati ki pratha ke anirupa hai ki sabase bari beti ki sati uka stara para ki j. Bari bahanam achi sati kara lem, ora choti bahanam uka kula mem se kuni yasakati hayam. Anyatha. Bari bahana choti bahana ki taraha achi sati nahim kara pg, ora bahari loga mem ki pithatha pathapimje. Shrimati Countess Sininga ne apain mana mem eka nirnaya liya, ora nirnaya lena ke turanta bada, unhan. कुईती के चित्र को देखा और गहरी सोच में डूब गई। इस बेटी को भी वह पहले प्यार करती थी और जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो वह बहुत खुश हुई। चाहे वह लड़का हो या लड़की,
वह नन्हे बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हालांकि ये बच्चा उसके साथ असंगत पैदा हुआ था, जिसके कारण उसे कई महीनों तक पीड़ा सहनी पड़ी और प्रसव के दिन ही उसकी लगभग मृत्यु हो गई। उसे डिस्टोसिया था, बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा था और उसे इस दुनिया में लाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह दोषों के साथ पैदा हुई थी। उसकी बेटी अंधी है, सास उसे परेशान करती थी, पति उससे नाराज रहता था और अविवाहित नंद उसका मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि बच्चा एक आपदा है। उसने बहुत सारे बुरे शब्द सुने थे और उसके लिए एक देखभाल करने वाली माँ बनना मुश्किल था। अपने आप से पूछो, वो उससे नफरत करती है। कुईती को जन्म देने के बाद वह न केवल एक माँ के रूप में उतनी कीमती होने में विफल रही, बल्कि उसकी जीवन शक्ति को भी चोट पहुंची, जिससे उसका दूसरा बच्चा कमजोर पैदा हुआ। 10 साल से अधिक समय तक वह अनजाने में अपनी दूसरी बेटी के बारे में सोचती रही, जो युवावस्था में ही मर गई थी, और वह अपनी सबसे बड़ी बेटी से प्यार नहीं कर सकी, जिसने गर्भ में ही उसके साथ झगड़ा किया था। इसलिए सारा प्यार उनकी सबसे छोटी बेटी कुईदाई को दिया गया। बस इतना ही। उसने झाओ परिवार से मिला नाम कार्ड नीचे रखा और तुरंत निर्णय ले लिया। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तेई के परिवार के नौकर जो खबर देने आए थे, आंगन के दरवाजे पर दौड़े। मैडम, प्रियतम ने पुरस्कार जीत लिया है, वह विजेता जिसे महामहिम ने स्वयं चुना है। श्रीमती पेई का दिल हमेशा सुबह जल्दी उठने पर दुविधा में रहता था, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसका दिल वापस मूल स्थान पर आ गया। ठीक है, ठीक है, जल्दी से शादी की केक निकालो और उन्हें वितरित करो। खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़े अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि हाई स्कूल में नंबर 1 विद्वान पेई जुआन ने अपनी वास्तविक प्रतिभा के आधार पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसके लिए महल की परीक्षा पास करना आसान नहीं था। परीक्षा के प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद महामहिम ने सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछे और चाहते थे कि कोई उनका उत्तर दे, और फिर अचानक से उनकी बाईं लिखावट पढ़ना चाहते थे। बाईं लिखावट पढ़ने के बाद वे ड्रैगन कुर्सी पर बैठ गए और उन्हें बहुत देर तक घूरते रहे। इतना समय बीत चुका है कि पेई जुआन को आश्चर्य हो रहा है कि आखिर क्या गड़बड़ है। क्या यह उसकी खराब लिखावट की वजह से है, या ये बात लीक हो गई है कि उसने शाही परीक्षा देने के लिए खुद को एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न किया था। उसने अपनी आंखें सीधी रखी और 100 अधिकारियों में से किसी एक की ओर देखने से खुद को रोक लिया। प्रधानमंत्री के पिता, सौभाग्य से नंबर 1 विद्वान का खिताब अभी भी उसके सिर पर है। कोई आश्चर्य नहीं, नंबर 1 विद्वान में एक महान आत्मा है। तुमने फूलों के शिकारी के रूप में मुझे मात दे दी है। मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर चल रहा हूँ। मेरे सामने मोती और जैद के साथ जीजिंग की छोटी महिलाएं अभी भी मेरे फूल को कैसे देख सकती हैं। उन्होंने पेई जुबान पर उनकी प्रसिद्धि छीनने का आरोप लगाया। वर्तमान विभाग के शीर्ष 3 छात्रों ने लाल वस्त्र और लाल फूल पहने और अपनी खुशी दिखाने के लिए सड़कों पर परेड की। पेई जुबानसी एक सौम्य तरीके से घोड़े पर सवार थी और घोड़े को ले जाने वाला अधिकारी उसके बगल में चल रहा था। इसने उसे फूलों की खुशबू से भर दिया। अपने सहकर्मियों के उपहास का सामना करते हुए उसने अपनी बाहें उठाई और मुस्कुराई। नहीं, यह माता पिता द्वारा पैदा किया गया था और भगवान द्वारा दिया गया था। क्या मैं इसे अभी भी वापस कर सकती हूँ? अभी भी इसे वापस नहीं चुका सकते। ओह! सोंग जिजेन के चेहरे पर फूल फेंके गए। शीर्ष स्थान और दूसरे स्थान पर जाने पर वे उन सुंदरियों से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही हैं। वह जोर से हंसा। ये दृश्य, क्या दृश्य है! वर्तमान विभाग में पहले 3 लोग सभी युवा और सुंदर हैं, और यीशुई की सुंदरता में पेई जुबान बहुत सुंदर है, इसलिए उसे सबसे अधिक फूल मिले, और यहाँ तक कि उसके बगल में घोड़े का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की टोपी भी फूलों से टेढ़ी हो गई। किसी ने गलती से उस सुंदर चेहरे पर प्रहार किया और यह पता नहीं लगा सका कि चैंपियन इतना लंबा, कोमल और कोमल कैसे था। एक फूल से मारे जाने पर उसका चेहरा लाल हो गया, जिससे कई बड़ी और युवा महिलाओं ने भौहें सिकोड़ ली और अपने दिलों को परेशान कर लिया। पेई जुबान ने तुरंत मीठी परेशानियों को महसूस किया और जल्दी से उन फूलों को पकड़ लिया जो उसकी आंखों से गुजरने वाले थे, और असहाय होकर आहें भरी। जीजिंग के लोग बहुत उत्साही हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग उत्साहित हैं। दा झाओ को कई सालों में इतना युवा चैंपियन नहीं मिला है। न केवल चैंपियन, बल्कि दूसरे और तीसरे पुरस्कार की औसत आयु भी उनके शुरुआती 20 के दशक में है। जीवन के चरम पर आप एक ही दिन में शीजिंग के सभी फूल देख सकते हैं। पेई परिवार की उपपत्नी, जो असीम रूप से सुंदर है, ने एक लड़की के बारे में सोचा जो एक कम टाइल वाली छत वाले घर में रहती थी जब उसे यंता के लिए नामांकित किया गया था। उसकी कलम जोश और महत्वाकांक्षा से भरी है, और जब उसकी कलम की नोक चलती है
तो वह दया से भरा हुआ लिखता है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। मैं जीत गया। जो जीता वह पेई परिवार का प्रिय है, प्रधानमंत्री के परिवार का बेटा है। यह आश्चर्यजनक है। पेई परिवार का सबसे बड़ा बेटा, क्या वह 18 साल से कम नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि इस साल की जिनशी और पहली कक्षा खराब नहीं है। यह न केवल बुरा है, बल्कि यदि नंबर 1 विद्वान प्रधानमंत्री का बेटा नहीं है, तो कई लोग उसे गिरफ्तार करने और उसके दामाद बनने के लिए आएंगे। क्या आपने इसे देखा है? छोटी नौकरानियों ने अपने मुंह ढक लिए और सिर से सिर मिलाकर हंसने लगी। आगे सुनने के लिए इंतजार न कर सकने के कारण बैच छोटे से आंगन की ओर दौड़ा। लड़की, लड़की, वह तेज हवा के झोंके के साथ दौड़ी और उसने कुईती को गिरते हुए देखा। दरवाजे के सामने वे शब्द जो इतने भयभीत थे कि मैं पूरी तरह से भूल गया। लड़की, लड़की, उठो। कुईती अपनी ताकत के साथ खड़ी हो गई और शर्मिंदगी से अपने कानों के टूटे बालों को झटकते हुए बोली, मैं विचलित थी, इसलिए मैं दहलीज से फंस गई। बैज उसे हर दिन प्रार्थना करते हुए देखती है। पहले तो उसने सोचा कि लड़की भगवान से अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन संयोग से उसकी बुदबुदाहट सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह उस बेवकूफ़ हंस के लिए प्रार्थना कर रही थी। अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए उसने खुशी से कहा, पेई बेवॉच ने पुरस्कार जीत लिया, चैंपियन। नंबर 1 विद्वान। कुईती ने उत्साह से उसकी आस्तीन पकड़ी। नंबर 1 विद्वान। तन्हुआ नहीं, ये तन्हुआ नहीं है, ये चैंपियन है। वह चैंपियन जो 18 वर्ष से कम उम्र का है। ये कहना वास्तव में रोमांचक है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने हाई स्कूल में लोगों को न केवल देखा है, बल्कि उन्हें मूर्खतापूर्ण तरीके से दीवार से गिरते हुए देखकर शर्मिंदगी भी महसूस की है। उन्होंने चैंपियन व्यक्ति को सीढ़ी पर चढ़ने में भी मदद की। इस बारे में बात करते हुए उसकी लड़की पेई की प्रिय कुलीन है। चटाई बिछाने के एहसान के बिना नंबर 1 विद्वान भी जमीन पर गिर सकता है। बहुत अच्छा। कुईती ने सच्चे मन से भगवान को धन्यवाद दिया। मिस बाई जी ने उससे धीरे से पूछा, मिस पेई की प्रिय हैं, लेकिन आप लुभा रही हैं। अन्यथा उसके लिए दिन रात प्रार्थना क्यों करें, यह आशा करते हुए कि वह हाई स्कूल जाएगा। प्रधानमंत्री का इकलौता बेटा, इस विषय में शीर्ष विद्वान, लेकिन उसकी बेटी इनमें से किसी को भी वहन नहीं कर सकती। उसे अपने मालिक के गलत भुगतान के लिए अग्रिम खेद हुआ। अपने शब्दों से कुईती को चोट पहुंचाने के डर से उसने हंसने की कोशिश की। शायद पेई प्रिय भी लड़की के बारे में सोच रहा है। क्या तुम्हें इसकी याद आएगी? कुईती को यकीन नहीं था। दिन भर की दिनचर्या के अंत में पेई जुबान अपने थके हुए और उत्साहित शरीर को घसीटते हुए घर ले गया और उसके माता पिता के मुस्कुराते चेहरों और उनकी बड़ी प्रशंसा ने उसका स्वागत किया। अध्ययन कक्ष में प्रधानमंत्री पेई ने सीधे मुद्दे पर पूछा, क्या आप जानते हैं कि महाराज हॉल में चुप क्यों हैं? पेई जुबान ने विचार किया और उत्तर दिया, महाराज पहले तो हायर का नाम नहीं लेना चाहते थे। हाँ, तुम अपनी तीक्ष्णता दिखाओ। वह तुम्हारी तीक्ष्णता को दबाना चाहता है और तुम्हारी आत्मा को कुंठित करना चाहता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक अधिकारी का करियर इतना सहज होता है कि वह तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। कभी कभी बहुत जल्दी अधिकारी के पद पर आसीन हो जाना अच्छी बात नहीं होती। पिताजी ने जो कहा उसके अनुसार महामहिम ने बालक को पुनः नंबर 1 विद्वान क्यों नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पेई ने अपनी भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। उनके माथे पर गर्व था। बेशक मेरा बेटा बहुत चमकदार है। आपकी महारानी आप में थोड़ी सी भी गलती नहीं ढूंढ सकती है। दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, कौन आपके सामने रहने की योग्य है? यदि आपकी महारानी आपको प्रधान के रूप में नहीं चुनती है, तो यह अनुचित है। प्यार और तर्क उचित नहीं हो सकते हैं। महाराज बूढ़े हो चुके हैं और वे राजकुमार के लिए एक वफादार और विश्वसनीय टीम तैयार करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले आपको चुना। जुबान अब से आप केवल एक शुद्ध मंत्री के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। मेरे बच्चे को ये याद है, एक बार हाई स्कूल में अस्थिर मन के साथ, मुझे डर है कि पूंछ आसमान तक चली जाएगी। वह ठीक है, वह जितना ऊपर रखा जाएगा वह उतनी ही प्रतिष्ठित होगी। शायद यही बेटी और लड़के में अंतर है। उस समय प्रधानमंत्री पेई को अपने निर्णय पर कोई अफसोस नहीं था और न ही पेई जुबान को। ठीक है, अपनी माँ के साथ जाओ, आज वह बहुत खुश है। पेई जुबान ने हंसकर कहा, अभी भी याद है, श्रीमती पेई की केवल एक ही संतान है और एकमात्र संतान ने वास्तव में सफलता के लिए प्रयास किया है, प्रथम पुरस्कार जीता है और एक आधिकारिक करियर में प्रवेश किया है। उसका चरित्र उच्च है और महत्वाकांक्षा उच्च है, जिस पर उसे अपने जीवन में सबसे अधिक गर्व है। माँ ने उस लड़की को देखा, वह सुंदर है, दिखने में अच्छी है, स्वभाव से भी अच्छी है, तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। पेई जुबान मुस्कुराए और सिर हिलाया।
वह दूसरों से अलग है, वह अन्य लड़कियों से बेहतर है। हाँ हाँ, मेरी जुबान एक को छोड़कर वह सबसे अच्छी है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसका जीवन खराब है। काउंट जिनिंग और उसकी पत्नी अपने व्यवहार के बारे में विशेष नहीं हैं। वे सबसे बड़ी बेटी को एक जीर्ण शीर्ण घर में और सबसे छोटी बेटी को एक सुंदर घर में कैसे रहने दे सकते हैं। दोनों बेटियां एक पति चुनती हैं। दामाद चुने। किस परिवार का दामाद चुने? आप किस बात से उत्साहित हैं? मैं। उसने सही समय पर अपना मुंह बंद किया और अचानक खड़ी हो गई। मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। ये बच्चा। श्रीमती पेई ने कुछ शब्द बुदबुदाए, ज्यादा नहीं सोचा और उसे जाने दिया। इसके अलावा जब पेई जुबान ने ये खबर सुनी कि श्रीमती काउंट जिनिंग अपनी बेटी के लिए दामाद चुनने जा रही हैं, तो वह हैरान और अधीर दोनों थी। लेकिन उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, और जब वह उस यार्ड से बाहर निकली जहां उसकी मां रहती थी, तो वह अपने रास्ते में रुक गई। दा झाओ पुरुषों और महिलाओं की रक्षा पर ध्यान देता है। पिछली बार जब वह पेड़ पर चढ़ी और चुपचाप दीवार पर चढ़ गई, तो ये पहले से ही अनुचित था। अब जब हाई स्कूल में शीर्ष छात्र को महामहिम द्वारा आधिकारिक पद से सम्मानित किया जाने वाला है, उथल पुथल है, और छोटे आंगन में रहने वाली लड़की की आलोचना निश्चित रूप से होगी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि कुछ सामान ले आओ, सारी तैयारियां करो और कार से निकल जाओ। शिनिंगबो हवेली, दक्षिण में एक एकांत छोटा सा आंगन। कुईती ने हरी और कोमल विलो शाखाओं को जमीन पर लिखने और चित्र बनाने के लिए लिया। बाई जी ने उस पर नजर डालने के लिए समय लिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बना रही थी, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और सिलाई जारी रखी। वसंत की हवा ने इसका फायदा उठाया और एक पतंग दीवार के ऊपर से उड़कर छोटे से आंगन के ऊपर आसमान में तैरने लगी। तुम्हें पतंग कहाँ से मिली? बाई जी ने आश्चर्य से पूछा। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने बाहर जाकर देखने की योजना नहीं बनाई थी। वह छेद वाली स्प्रिंग शर्ट की मरम्मत में लग गई। उसे उस लड़की पर तरस आ रहा था, जिसके पास अच्छे मौसम में बदलने और धोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। दीवार की दूसरी तरफ पेई जुबान इतना चिंतित था कि उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसने सही समय पर पतंग की डोर काट दी और पतंग को छोटे से आंगन में गिरा दिया। यार्ड में एक और पतंग थी, और बैच अब उसे अनदेखा करने का नाटक नहीं कर सकती थी। उसने अपनी सिलाई छोड़ दी, यार्ड में गई और पतंग उठा ली। अरे, क्या इस पर कुछ लिखा है? यह अफसोस की बात है कि वह ज्यादा पढ़ नहीं सकती, इसलिए वह समझ नहीं पाती कि पेई जुबान ने क्या पूछा। बेटी, हमारे आंगन में एक पतंग उड़ रही है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। कुईती ने हल्की सी आह भरी। तुमने क्या लिखा? यह। यदि कुईती वास्तव में अंधी है, बाई जी अंधी है, वह एक छोटी नौकरानी के रूप में बुरी नहीं है जो पर्याप्त खा सकती है, वह कैसे जान सकती है कि कैसे पढ़ना है? चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ उसने अनिच्छा से कहा, मैंने इसे लिखा है। आपने? मैंने। तुम मेरा हाथ पकड़ो और बिल्लियों और बाघों की तरह चित्र बनाओ। बैच की आंखें चमक उठी। यह एक अच्छा विचार है। वह भूल गई कि यद्यपि कुईती एक गुरु के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन उसे गुरु जैसा व्यवहार नहीं मिला। वह बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, और कुईती अंधी पैदा हुई थी, इसलिए उसे उससे ज्यादा बेहतर नहीं होना चाहिए था। कुईती की लिखावट पिछले जन्म में पेई जुबान द्वारा सिखाई गई थी। उन्होंने शादी की रात से लेकर दुल्हन के कमरे में 3 साल तक पढ़ाया। दा झाओ की शिक्षा में सबसे अच्छे तांग हुआ द्वारा प्रशिक्षित छात्र अब पहले जैसे कुईती नहीं रहे, भले ही वे उन्हें देख न सके। बाई जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और शब्दों को वाक्यों में जोड़ते हुए आखिरी स्ट्रोक पूरा करने के लिए लड़खड़ाया। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। जीजिंग में युवा, सुंदर और आकर्षक चैंपियन आदमी ने अपने कपड़े उठाए और लड़की की प्रतिक्रिया न मिलने के डर से, जवाब न देने के डर से, दोषी विवेक के साथ उन्हें ग्रे दीवार पर पोस्ट कर दिया। अन्याय ये सब देख नहीं सका। अपने परिवार की प्रियतमा पर मोहित मत होइए। बहुत इंतजार करने के बाद वह दीवार के दूसरी ओर खड़े किसी व्यक्ति से बात करने का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ने के लिए उत्सुक थी। पतंग बिना किसी कारण के उड़कर अंदर नहीं आएगी। कुईती ने अनुमान लगाया कि वह दीवार के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था, और सफेद कबूतर ने उसे आंगन में दीवार के नीचे सहारा दिया। क्या तुम अभी भी वहां हो? मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा यहाँ हूँ। पेई जुबान ने अपनी भौहें उठाई और स्वर्ण महल में महामहिम के सवालों का जवाब देने से भी ज्यादा घबरा गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। आपके हाई स्कूल के परिणाम के लिए बधाई। दोनों ने दीवार के आर पार बातें की, और पेई शुवानिक्सन के हाई स्कूल से आई खुशखबरी अप्रत्याशित रूप से इस छोटे से आंगन में फैल गई। मैं उस दिन जल्दी में निकल गया था, और मुझे आपको आपके जन्मदिन पर बधाई देने का समय नहीं मिला।
तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता? मैं पेई जुबान शर्मिंदा था और दीवार की ओर झुका। जियाओशिंग एक लड़की से मिलना चाहता है। कुईती ने कुछ नहीं कहा। ये सुनते ही बाईजी के कान खुजलाने लगे। अरे, कभी नहीं सोचा था कि तुम पेई परिवार के ऐसे दामाद हो। नंबर 1 विद्वान। क्या यह उसकी लड़की के साथ संबंध नहीं है? दूरदृष्टि रखें। कितना विवेकशील। यदि कोई लड़की इस मूर्ख हंस से शादी कर सकती है तो कम से कम उसे तंग नहीं किया जाएगा। मैं ठीक हूँ। पेई जुबान को उसकी अच्छी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसने चिंतित होकर कहा, मैंने अपनी माँ से सुना है कि श्रीमती काउंट शिनिंग लड़की के लिए एक पति चुनने का इरादा रखती हैं। मैं यहाँ लड़की को ये बताने आया हूँ कि शादी एक महत्वपूर्ण मामला है। जल्दबाजी मत करो। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो बस पतंग उड़ा दो। जब भी मुझे पतंग दिखेगी, चाहे मैं कितनी भी दूर या कहीं भी रहूं, मैं घोड़े पर सवार होकर जरूर आऊंगा। एक व्यक्ति जो सिर्फ एक बार मिला था के शब्दों ने कहा कि यह वास्तव में अतिक्रमण है। उसे ज्यादा परवाह नहीं थी और उसने गंभीरता से जोर दिया, लड़की, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं भरोसेमंद हूँ। मुझे आप पर विश्वास है। कुईती मुस्कुराए। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपसे मदद मांगूंगी। उसकी स्पष्टवादिता और विश्वास ने पेई जुबान के दिल को छू लिया। वह उस दीवार को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी, उसके पार देखने के लिए उत्सुक थी। अंधेरा हो चला था। वे बिना कुछ बोले वहीं खड़े रहे। सूरज मंद था और विलो की शाखाएं हल्के से हिल रही थी। बेटी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। पेई जुबान ने अपनी हथेली को भूरे रंग की दीवार पर दबाया और अपने हाथ से पाउडर पोंछा। वह खुशी से मुस्कुराई, मुझे उस पतंग को उड़ते हुए देखने की उम्मीद है। संयमित हृदय सूर्य से भी अधिक गर्म था, जो कुईती के हृदय को गर्म कर रहा था। उसने ध्यानपूर्वक पेई जुबान के जाने वाले कदमों की आवाज़ सुनी और फिर पास से गुजरने वाली गड्ढों की आवाज़ सुनी। संध्या हो गई है और दुनिया शांत है। सफ़ेद कबूतर भड़क गया। लड़की, मैडम वास्तव में तुमसे शादी करना चाहती हैं। अगर पेई बेवॉच ने इस बारे में बात नहीं की तो मुझे डर है कि हम आखिरी व्यक्ति होंगे जो इसके बारे में जानेंगे। पेई प्रिय को सब पता है। बाहर रिश्तेदारों से चर्चा करने की लड़ाई कितनी बड़ी है। कुईती ने पतंग को प्यार से गले लगाया। जल्दी मत करो। किसी ने तो पहले ही वादा पूरा कर दिया है। वह उस पर भरोसा करती है। बेशक वह उस पर भरोसा करती थी। इस दुनिया में वह बिना किसी कारण के दो लोगों पर भरोसा करती है। एक सफ़ेद कबूतर है जो उसके साथ बचपन से बड़ा हुआ है और दूसरा पेई जुबान है जो उससे शादी करने के लिए उसे 8 पालकी में लाया है। वह एक सौम्य, विचारशील, आत्मसंयमित और अच्छी पत्नी है। प्रियतम बुरे मूड में है। कार का पर्दा नीचे करते हुए पेई जुबान की आंखों में खुशी पानी की धुंध की तरह फैल गई और उसकी आवाज़ थकान से भर गई। वापस जाओ। उसे दोबारा और अधिक देखना पड़ा। लड़की के दिल को देखो और देखो कि श्रीमती काउंट जिनिंग सबसे बड़ी बेटी के लिए किस तरह का परिवार चुनेगी। उसकी ज़ेड जैसी उंगलियां कस गईं और पानी के लाल रंग की पोशाक में एक लड़की उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। लड़की हल्के से मुस्कुराई और वहां बैठने का मतलब था कि साल स्थिर थे। आज से छोटे से आंगन पर दिन रात निगरानी रखने के लिए लोग भेजो। अगर आसमान से कोई पतंग उड़ती दिखे तो तुरंत मुझे खबर देना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ प्रिय, श्रीमती काउंट शिनिंग अपनी बेटी के लिए दामाद चुनने में बहुत ही चूजी हैं। कुईती की शादी के बारे में बात करना आसान है। वह पोते के परिवार के सबसे छोटे बेटे को पसंद करती है। कठिनाई कुईदाई में है। कुईदाई कुईती से अभिभूत नहीं होना चाहती। उसे एक ऐसे पति का परिवार ढूंढना होगा जिसका पारिवारिक दर्जा सूर्य के परिवार से उच्च हो। शादी 2 उपनामों वाली शादी करना अच्छी बात है। श्रीमती सन आज फिर से शिनिंगबो हवेली गईं। वह अक्सर आती थी और बाहरी लोगों ने शायद ये समझ लिया था कि दोनों परिवार शादी करने का इरादा रखते हैं। यह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरे परिवार का निराश बच्चा लिंग कियांजन से मिलना चाहता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि मैंने उससे जो कहा वह ज़ेड जैसे फूल की तरह है। यह मैं ही हूँ जिसने उसकी खूब प्रशंसा की है, जिससे वह पूरे दिन इसके बारे में सोचता रहता है और इसका बेसब्री से इंतजार करता है। मुझसे मिलना। श्रीमती काउंट शिनिंग थोड़ा हिचकिचाती हुई देखी। ये श्रीमती सन यहाँ एक उद्देश्य लेकर आई थी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि आप नहीं मिलते हैं तो आप मुझे एक चित्र दे सकते हैं। मैं जो कहूँगी वह काम नहीं करेगा। उसे अपनी आंखों से देखकर आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। वह इतनी बातें करने लगी कि उसका गला सूख गया और उसे प्यास लगने लगी, इसलिए उसने श्रीमती काउंट शिनिंग से लगभग कसम खा ली कि वह कुईती से शादी करेगी और फिर उसे वह चित्र मिल गया जिसकी उसे इच्छा थी। चित्र दिए जाने के बाद विवाह को छोटा हिस्सा माना गया।
कुईती की उपस्थिति के साथ दोनों पत्नियां निश्चित हैं। सन जियाओ प्यारी पहली नज़र के प्यार से बच नहीं सकती, लेकिन यह एक ऐसा संयोग है कि सन जियाओ प्यारी के लिए तैयार किया गया चित्र गलती से सनेर प्यारी द्वारा ले लिया जाता है। फैंगमिंग टॉवर, जिनशी उत्सव भोज। इतने आहिस्ता क्यों? उसी टेबल पर बैठे विद्वानों ने एक के बाद एक सुनजे का मजाक उड़ाया। इस बार सुनजे पहले और 28वें स्थान पर था। उनकी रैंकिंग बहुत कम नहीं है, लेकिन ये जिनसी और शीर्ष 3 की तुलना में पर्याप्त नहीं है। नंबर 1 विद्वान तन्हुआ उसी मेज पर बैठे सॉन्ग जिजे ने कहा, क्या ये पिछले राजवंश से वसंत में सो रही बेगोनिया की एक तस्वीर नहीं है जो इस तरह से दिखाने की योग्य है? उसके आसपास के लोगों को देखो। जहां तक उसकी बात है, अगर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है और वह उच्च प्रतिभा वाला है और नंबर 1 विद्वान यहाँ है, तो उसके लिए सुनजी अहंकारी होने की अभी भी गुंजाइश है। उन्होंने आह भरते हुए कहा, यह अभी भी कम महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के दामाद की शान शौकत और मिलनसारता अद्वितीय है, और यहाँ आकर उनसे मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। जिंगुआंग पेई जुबान का चरित्र है, जिसका आविष्कार कल ही किया गया था, ताकि सहपाठियों और सहकर्मियों के लिए एक दूसरे से मेल खाना सुविधाजनक हो। जिंगुआंग, ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? दूसरे स्थान पर रही झेंग वूजी ने अपने प्याले में उच्च गुणवत्ता वाली नाशपाती के फूल वाली शराब भरी। पेई जुबान को सचमुच कुछ समझना मुश्किल हो गया था और वह नहीं जानता था कि क्या करे, इसलिए उसने अपना गिलास उठाया और पीने लगा। सॉन्ग जिजेन और झेंग वूजी ने एक दूसरे को देखा, गपशप की और उत्सुकता से अपनी बड़ी आंखें खोलीं। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे एक सलाहकार के रूप में आपकी मदद करने दें। ये सही है, जिजेन सही है। वे पेई जुबान के मित्र माने जाते थे और उनका चरित्र भी अच्छा था। कुछ सोचने के बाद उसने अपनी भौहें झुका लीं और कहा, अगर कोई लड़की हुई तो? लड़की? सॉन्ग जिजेन ने फुसफुसाते हुए, अपने हाथों को रगड़ते हुए, बड़ी दिलचस्पी से कहा, लड़की को क्या हो गया है? मुझे इसके बारे में सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। परेशानी मत करो, जिंगुआंग को इसके बारे में बात करने दो। पेई जुबान अकथनीय भावनाओं में डूब गया और खुद को बाहर नहीं निकाल सका। अगर कोई लड़की है तो आप उसे देखने पर अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और जब आप उसे नहीं देखेंगे तो आप उसे याद करेंगे। आप उससे शादी करना चाहते हैं और अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उससे शादी करना एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है। ये वास्तव में उसके लिए अच्छा है। मुझे क्या करना चाहिए? उससे शादी करना शायद उसके लिए अच्छा न हो। इसका क्या मतलब है? सॉन्ग जिजेन उलझन में देखी। बेशक तुम उससे शादी करो, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा उससे शादी करने का क्या मतलब है? हाँ, शादी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जिंगुआंग, तुम किसे पसंद करते हो? मैं। पेई जुबान ने भौहें सिकुड़ी। कुछ शब्द कहे जा सकते थे, लेकिन कुछ शब्द सिर्फ उसके पेट में सड़ सकते थे। अगर उस लड़की की इच्छा अपने पति से शादी करने और अपने बेटे को पढ़ाने की है, तो वह ये कैसे कर सकती है? यदि वह अपनी बेटी से घृणा करती है, तो क्या उससे विवाह करने से उसे हानि नहीं होगी? वह मिस कुई के साथ खुलकर बात नहीं कर सकती, और वह अपने स्वार्थ के कारण पेई की पूरी हवेली को आग नहीं लगा सकती। एक बार सम्राट को धोखा देने का अपराध उजागर हो जाए तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे किसी और से शादी करते हुए नहीं देखना चाहता। ये सरल है। झेंग वूजी ने अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया। फिर उससे शादी करो, पहले उसके घर शादी करो और फिर बाद में इस बारे में बात करो। तुम अपनी ईमानदारी से उससे शादी करो, अपनी ईमानदारी से उसकी रक्षा करो और एक बार में एक कदम उठाओ। इस विषय की नंबर 1 विद्वान को अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या का सामना करना पड़ा और उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया। बगल वाली मेज पर भी शोरगुल शुरू हो गया। भाई क्यूमिंग, क्या आपको किसी युवा महिला का चित्र नहीं मिला? यह महिला कौन है? इसे राष्ट्रीय सुंदरी कहा जा सकता है। यही नहीं है भाई क्यूमिंग, क्या ये वही वसंत में सोती हुई बेगोनिया है जिसका आपने उल्लेख किया था? सब हंस पड़े। ऐसे भी लोग हैं जो पेंटिंग में महिला को देखकर भ्रमित हैं और उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। यह एहसास होने पर कि उसने गलत पेंटिंग ले ली है, सनजी दंग रह गया और जल्दी से उसे लपेट दिया। जैसा कि उम्मीद थी, यह उसकी मां द्वारा शिनिंगबो हवेली से ली गई होगी। पेंटिंग में दिखाए गए लोग उसके भावी भाई बहन हैं। वह अपने भावी भाई बहनों की शक्ल सूरत उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने पर्याप्त रूप से नहीं देखा है। आप क्या शुल्क लेते हैं? मुझे देखने दो। जिस व्यक्ति ने पेंटिंग जब्त की थी, वह द्वितीय श्रेणी में 39वें नंबर का था, जो दरबार में तीसरे दर्जे के अधिकारी का दूसरा बेटा था। सनजी नाराज नहीं हो सकता था।
उसने कई बार चित्रों को हाथों से गुजरते हुए देखा और उसके भावी भाई बहनों का मूल्यांकन किया गया। वह नाराज नहीं हो सकता था और उसका चेहरा लाल हो गया। वे क्या इधर उधर कर रहे हैं? ये पेंटिंग जैसा दिखता है। चित्रकारी तेई जुबान ने अनायास ही वहां देखा। उसकी आंखें जम गईं। पेंटिंग में महिला ने नए और खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं। जाहिर है वह अच्छी तरह से तैयार है। उसके बाल काले हैं और चेहरा साफ है। चेहरा चीनी मिट्टी जैसा सफेद है और उसकी आंखें रेशम से ढकी हुई हैं। वसंत की हवा उसके बालों को उसके कानों के चारों ओर उड़ाती है और बालों का हर एक कतरा चुपचाप कोमलता की बात करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सुंदर है। हालांकि ये खुश नहीं दिखता है और इस शांत उदासी के जुड़ने से लोगों के दिल और भी अधिक काम उठते हैं। कितनी सौम्य और सुंदर लड़की है। सुन क्यूमिंग, तुम्हें ये सुंदरता कहाँ से मिली? मैंने ये चित्र खरीदा है। नहीं, यह नहीं। सनजी खुद का बचाव करने की जल्दी में था, लेकिन अचानक उसने अपने बगल में हवा का एक झोंका महसूस किया। तेई जुबान 2 कदम आगे बढ़ा। उसका सुंदर चेहरा ठंडा था। वह हमेशा से ही सुरुचिपूर्ण और गरिमामयी रही हैं और उनका आचरण भी अत्यंत सुंदर रहा है, लेकिन इस समय उनकी आंखें ठंडी हैं और इससे लोगों की रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ड्रॉ करो, लाओ, झो ये ने व्यंग्य किया। जिंग गुआंग, मैंने ये पेंटिंग सबसे पहले खरीदी थी। एक सज्जन व्यक्ति वह नहीं चुराता जो दूसरों को पसंद हो। आप इसे लाओ। वह शायद ही कभी गुस्सा होती थी और उसकी आंखों में गड़गड़ाहट थी। न केवल झो ये उससे डरता था, बल्कि सुनजी भी मौत से डर गया था। सोंग जिजेन और झेंग वूजी उन लोगों में से है जो उससे बात कर सकते हैं और वे अभी उसे मनाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। भगवान जाने कि सितारों से सजी नंबर 1 विद्वान इतनी नाराज कहाँ है। झो ये ने पेंटिंग सौंप दी और पेई जुबान ने पेंटिंग में व्यक्ति की भौहें और आंखों को धीरे से सहलाया। क्या वह भी ऐसी चीज है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं? ये वाक्य छोड़कर वह अपनी आस्तीनें हिलाकर चली गई। अतीत में सभी ने कहा कि नंबर 1 विद्वान नर्म स्वभाव वाला और पानी की तरह कोमल था। आज जब उसे देखा तो पता चला कि वो पेई परिवार का बेटा कौन था। बसंती हवा की तरह मुस्कुराओ, गरज और बारिश की तरह क्रोधित। हम उसे नाराज नहीं करेंगे, है न? किसी ने चुपचाप कहा। हम कौन हैं? हम कौन हैं और आप कौन हैं? मैंने उस लड़की पर उंगली नहीं उठाई। वह भाई झो था। उसने इस घटना को अंजाम दिया। यह मैं कैसे कर सकता हूँ? झो ये ठंडे पसीने में डूब गया, जिम्मेदारी से बचने में व्यस्त। सुनजे, ये सब तुम्हारी गलती है। सनजेट के पैर कांपने लगे, गला रूंध गया और वह बोल नहीं सका। जिंग गुआन बहुत क्रोधित हो गया। मैं उसे बहुत समय से जानता हूँ और यह पहली बार है जब मैंने उसे अपनी पीठ मोड़ते हुए देखा है। सोंग जिजेन अचंभित रह गया और झेंग वूजी के साथ नजरें मिलाईं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी यही अनुमान लगाया। क्या जिंगुआन को जो लड़की पसंद है वह पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति है? वह लड़की कैसी दिखती है, क्या तुम साफ देख सकते हो? झेंग वूजी ने बड़े बाय कुगन को उसकी ओर बेदर्दी से उछाला। क्या तुम नींद में बात कर रहे हो? अगर मैं जिंगुआन को नहीं देख पाया तो मैं गुस्से से मरने वाला हूँ। वह इतना खूंखार है, मेरी हिम्मत कैसे हुई उसे घूरने की? हाँ, सोंग जिजेन ने खुद से कहा, प्रकाश बहुत भयंकर है। प्रियतम, किताब वाले लड़के ने उसे जल्दी से बाहर निकाल दिया। फैंग मिंगहो के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद पेई जुबान ने कड़ी मेहनत से लंबी दूरी तय की। झो येजी की टिप्पणियों और हंसी को सुनते हुए और सनजी की क्रोध को निगलने की छवि उसके दिमाग में गूंज गई। उसने सड़क के किनारे लगे एल्म के पेड़ पर मुक्का मारा, अपने हाथ के पिछले हिस्से से बहते खून को अनदेखा करते हुए, अपनी झुकी हुई लंबी पलकों को और अपने सुंदर चेहरे को एक क्षण के लिए ठंडा और उदास होते हुए। किताब वाला लड़का हैरान रह गया। प्रिय, तुम अभी भी खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? वह पेई जुबान को पट्टी बांधने के लिए साफ घूंघट को फाड़ने में व्यस्त था। पेई जुबान उदासीन था और उसकी काली भौहों में एक तूफान उठ रहा था जिसे कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। श्रीमती काउंट शिनिंग ने अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए सन परिवार को चुना। सनदा के प्रिय की पहले से ही एक पत्नी और उपपत्नी है और सनेर के प्रिय की भी यांग परिवार की दूसरी बेटी से सगाई हो चुकी है। आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एकमात्र व्यक्ति कामुक संसान लांग है। सुनसान कौन है? उसके दिल में चमकते चांद को कलंकित करने की हिम्मत। उसने दांत पीसते हुए किताब पढ़ने वाले लड़के को धक्का दिया और चित्र को अपनी बाहों में लेकर घर चली गई। प्रिय, वह उसके पास पहुंचा, उसके चेहरे को देखा और चुप हो गया ताकि उसके मालिक को परेशानी न हो। मिट्टी की मूर्ति भी कुछ हद तक गुस्से में है।
प्रधानमंत्री का दामाद मिट्टी की मूर्ति नहीं है जिसे कोई चपटा करके गोल कर दे। अगर कोई अपनी आंखें नहीं खोलता और वास्तव में उसे बदमाश मानता है तो उसे पहले कीचड़ में लौटना पड़ता है ताकि रौंदे जाने का एहसास हो। पेई जुबान घर गया और खुद को दरवाजे में बंद करके उदास हो गया। जब श्रीमती पेई ने पूछा तो किताब वाले लड़के ने सच सच जवाब दिया और मालिक और नौकर सभी हैरान रह गए। वह कहाँ पागल हो रही है? किताब वाले लड़के ने अपना सिर खुजलाया। मैडम, प्रियतम का हाथ घायल हो गया है, आपको अंदर जाकर देखना चाहिए। श्रीमती पेई ने 2 कदम आगे बढ़ाए, दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाया और अंत में अपना उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। भूल जाओ, कुछ हुआ है, पहले उसे पता लगाने दो। उसने पुस्तक पढ़ने वाले लड़के से पूछा, तुमने कहा कि बेलवेड ने एक पेंटिंग के कारण सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा घुमाया था। हाँ, यह एक पेंटिंग है। दरवाजे के बाहर से आती आवाज पेई जुबान के कानों में एक एक शब्द गूंज रही थी, लेकिन पेई जुबान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चित्र फैला हुआ था, वह बैकलाइट के सामने चुपचाप बैठी थी। श्रीमती पेई ने ध्यान से पूछा, क्या ये लड़की है? चित्र में जो व्यक्ति है वो वास्तव में एक लड़की है। चेहरा साफ देख रहे हो? पुस्तक वाले लड़के ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ प्रियतम को देख रहा हूँ। वैसे भी प्रियतम उस पेंटिंग को देखकर नाराज हो जाता है। झो परिवार का प्रियतम सन प्रियतम से एक पेंटिंग खरीदना चाहता है। प्रियतम कुछ कदम आगे बढ़ा। उसे जाने दो, उसका यह मतलब नहीं है। श्रीमती पेई ने धीमी आवाज में कहा, होंगजो के लिए। यान, उसने अपना सिर घुमाकर बंद दरवाजे की ओर देखा, मानो वह लकड़ी के दरवाजे के माध्यम से पेई जुबान की उदासी और अपनी पीठ को खोलने में असमर्थता को देख सकती थी। जुबान, इन्हें एक पुरुष के रूप में जीवन शुरू किया और जिन लोगों से वह मिली उनमें से अधिकांश पुरुष थे। अगर आप महिलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसने काउंट शिनिंग के परिवार की सबसे बड़ी बेटी के बारे में सोचा जो लोकप्रिय नहीं थी। वह एक टूटे फूटे खपरेल के घर में रहता है, अंधा है और उसके पास केवल एक वफादार नौकरानी है। उसे याद आने लगा कि इस दौरान पेई जुबान ने कितनी बार अंधी लड़की का जिक्र किया था। पेई जुबान एक बातूनी व्यक्ति नहीं है, वह युवा होने पर सामान्य पुरुषों और महिलाओं की तरह जीवंत नहीं है और उसका स्वभाव स्थिर है, लेकिन वह रुचि के बिना लकड़ी का एक कठोर टुकड़ा नहीं है। उसे खेलना भी बहुत पसंद है और परीक्षा के बाद जब वह सांस ले पाएगी तो पतंग उड़ाएगी। पतंग छोटे आंगन में गिर गई और पेई जुबान रेन भी छोटे आंगन में गिर गया। जब भी वह छोटे से आंगन में रहने वाली लड़की के बारे में बात करती तो कोमलता और प्रशंसा से भर जाती, मानो वह कोई दोषयुक्त अंधी लड़की न होकर आकाश में लटकता हुआ कोई चमकीला चांद हो। अपने दिल को रोशन करना और अपनी आंखों को समृद्ध बनाना वह आजीवन सपना है जिसे वह पूरा करना चाहती है। जैसे ही हवा उसके कानों के पास से गुजरी, श्रीमती पेई अचानक उत्तेजित हो गई। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। श्रीमती पेई दरवाजे के सामने खड़ी थी और अपने दिल को थामते हुए अंदर जाने से पहले खुद को संभाल रही थी। चमेली की कढ़ाई वाली पोशाक का किनारा चमकीले फर्श की टाइलों पर फैला हुआ था। बांस का पर्दा उठा और उन्होंने शाम को अपनी अकेली बेटी को देखा। अभी भी नाराज, वह चाय बनाते समय इधर उधर घूमी और एक नज़र मेज पर रखे चित्र को स्पष्ट रूप से देखा। निश्चय ही ये वही लड़की थी जिसे उसने पहले भी देखा था। मैं अब और क्रोधित नहीं हूँ। शांत होने के बाद पेई जुबान ने अपनी बाहें उठाई और सुंदर महिला की ओर देखा। माँ, मुझे अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये पता चला है कि पसंद करना पसंद है और एक नज़र में दिल की धड़कन लंबे समय तक चल सकती है। वह झोये और दूसरों द्वारा मिस कुई के प्रति अनादर को सहन नहीं कर सकती है और वह ये नहीं समझ सकती है कि मिस कुई किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही है जो इंसान नहीं है। वह जल्दी में है, वह परेशान है। वह तो काउंट शिनिंग दंपति को भी तोड़ डालना चाहती थी। मेज पर लेटकर पेई जुबान ने अपनी उंगलियों से पेंटिंग में व्यक्ति की नाक के नाजुक और सीधे पुल को ब्रश किया, उसके चेहरे को दबाया और उसके निर्दोष कंधों और गर्दन की प्रशंसा की। श्रीमती पेई ऐसी महिला है जो इस स्थिति से गुजर चुकी है और उन्होंने दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद उनके दिल में सदमे की भावना कम हो गई और वह आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकी। आपको ये क्यों पसंद है? मैंने पहले कभी नहीं देखा कि आपको दूसरी लड़कियों के लिए कोई इच्छा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उससे नहीं मिला। ज्वांग वान लैंग का स्वभाव वसंत की हवा की तरह था, शायद वसंत की हवा से भी अधिक नर्म। तुम्हारे पिता ने दूसरों को धोखा देने के लिए तुम्हारे लिए पहले से ही एक दुल्हन तैयार कर रखी है। वह मूल रूप से शादी से पहले तुम्हारे अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का इंतजार करना चाहते थे।
मैं नहीं चाहता हूँ। उसकी थोड़ी कलाई पर टिकी हुई थी और दोनों हाथ जोड़कर कह रही थी, माँ, मेरे पास कोई है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। झेंग वूजी सही थे। अगर आपको ये पसंद है तो इससे शादी कर लें और शादी के बाद इसके बारे में बात करें। अगर वह कुई को भूल गई तो उसे जीवन भर इसका अफसोस रहेगा। जुबान तुमने माँ को मुश्किल में डाल दिया है। पेई जुबान खड़ा हुआ और अपनी माँ को प्रणाम किया। मेरे बच्चे को और कुछ नहीं मांगना है, बस इतना कि वह जीवन भर दिन रात उसके साथ रहे। धूप वाले दिन बैच को छींक आ रही थी और उसकी पलकें फड़क रही थी। बाईं आंख फड़कने के बाद और दाईं आंख फड़कने के बाद वह अपनी ऊपरी पलकों को सहारा देने के लिए 2 लंबी पतली टूथपिक्स काटने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हें हमेशा नाचने दो, छोटी नौकरानी गुस्से से गुनगुनाते हुए मुंह से बोली। कुई उसकी शक्ल नहीं देख पा रही थी, इसलिए वह मोटे तौर पर उसकी गोरी त्वचा और सुंदरता की कल्पना कर सकती थी। सावधान रहना, अपनी आंखों को चोट न पहुंचाना। चिंता मत करो लड़की, मुझे इस तरह खेलने की आदत है, ये ठीक है। उसने कहा कि ठीक है। वह शायद जानती थी कि कुई को खुद से ज्यादा उसकी आंखें पसंद हैं। उसने एक एक करके टूथपिक्स नीचे रख दिए, अपनी आंख के कोने से मेज पर पतंग की एक झलक देखी और उत्साहित होकर कहा, बेटी, हम पतंग कब उड़ाने वाले हैं? सुबह सुबह उसने चुपके से एक सभ्य व्यक्तित्व वाली छोटी नौकरानी को ढूंढ निकाला और उसके मुंह में सच्चाई के बदले में मीठी सुगंधित ऑस्मेंथस केक का एक टुकड़ा दिया। पत्नी पहले से ही लड़की की शादी की व्यवस्था कर रही थी। प्रधानमंत्री के दामाद और वर्तमान शीर्ष विद्वान के समर्थन में। पत्नी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि चाचा को भी जब पेई बेल से मिलना होता है तो उन्हें प्रण निवेदन करना पड़ता है। बाई जी अधिक से अधिक महसूस कर सकती है कि पेई जुबान अच्छा है, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अच्छी उपस्थिति, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वभाव, विशेष रूप से अपनी लड़कियों के साथ व्यवहार करते समय, ये सबसे अच्छा है। वह मन ही मन पेई जुबान को अपना भावी दामाद मानती थी और जब उसने उसे याद दिलाया तो कुई को अचानक एक वाक्य याद आया, जितनी जल्दी हो सके। यदि बहुत देर हो गई तो इसमें बदलाव आएगा। बाय बाय, मेरी मदद करो, मैं ये पतंग खुद उड़ाना चाहता हूँ। सफेद कबूतर अचानक उछल पड़ा, अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए। ठीक है। पेई जुबान जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने पिता के सीने में दबे गुस्से को खुलकर स्वीकार कर लिया। श्रीमती पेई अपनी बेटी को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पेई से अपने बेटे को मनाने के लिए कहा। बाहर जाकर देखें तो लोगों को केवल इतना पता है कि पेई परिवार का एक वैध बेटा है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि श्रीमती पेई ने एक असली बेटी को जन्म दिया है। पेई जुबान अपने जन्म के बाद से लगभग 18 वर्षों से इरलान की भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री पेई चाहते थे कि वह शाही परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लें और इसके लिए उन्होंने निजी लाभ के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया, लेकिन अब उनका गौरवान्वित पुत्र उनसे क्या मांग रहा है? क्रोध उमड़ पड़ा। उसने उसे दबा लिया, क्योंकि वह पिता और पुत्री के बीच के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। विभाजित करें, आप रंग से अंधे हो गए हैं। एक पिता आपको कैसे भ्रमित होने दे सकता है? एक बच्चा अपने माता पिता की शिक्षा से शर्मिंदा होता है। उसने एक बार अपना सिर जोर से मारा और दूसरी बार भी अपना सिर मारने की योजना बनाई। श्रीमती पेई ने कठोर मुंह और कोमल हृदय से नर्म फ्यूटन का एक टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। अपने माथे को फूटन पर थपथपाते हुए पेई जुबान ने धीरे से कहा, वह अंधी है और बच्चे के असली शरीर को नहीं देख सकती। काउंट जिनिंग और उसकी पत्नी दोनों ही हृदयहीन हैं। वे उसके लिए पति कैसे चुन सकते हैं? मैं उसे आग की लिपटों में कूदते हुए नहीं देख सकता। यदि आप नहीं चाहते कि वह आग की लिपटों में कूदे, तो आप चाहते हैं कि सैकड़ों लोग आपके साथ अग्निकुंड में जाएं। आपकी पहचान का खुलासा करना आपके घर में तोड़फोड़ करने जैसा गंभीर अपराध है। उस समय तुम्हारे पिता और मैं बहुत गुस्से में थे और हमने कसम खाई थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और मेरा बच्चा भी भविष्य में देश का एक अच्छा मंत्री बनेगा। तुम एक लड़की हो और एक अधिकारी नहीं बन सकती, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अधिकारी बनो और उन लोगों से डटकर मुकाबला करो। कोशिश करो। मैं इसके लिए आप पर शर्मिंदा हूं। सौभाग्यवश आप बचपन से ही प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी और दृढ़निश्चयी रहे हैं। इस बारे में बोलते हुए उनकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। जुबान डैडी ने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है, तो तुम क्यों नहीं जाते? और तुम कठिन रास्ता अपनाना चाहते हो, उन लोगों के दिलों के साथ जुआ खेलना चाहते हो जिन पर तुम दांव नहीं लगा सकते। आप कहते हैं कि वह अच्छी है, अगर वह बुरी है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री पेई ने अपना सिर नीचे किया और अपनी हथकड़ियां सीधी की। घुटने टेक दो। मैं इस शादी के लिए सहमत नहीं होऊंगा। अगर तुम अपने घुटने तोड़ दोगे तो मैं। पति
श्रीमती पेई ने उसे कठोर बात करने से रोका। पेई जुबान ने अपने होठों को दबाया और सीधे घुटनों के बल बैठ गया। जब पेई जियांगे ने उसका जिद्दी रूप देखा तो वह क्रोधित हो गया और अपनी आस्तीन लहराते हुए बोला, मैं बस यहीं रुककर देखूंगा कि तुम कितनी देर तक घुटने टेक सकती हो। प्रिय, पतंग पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। जो लोग दिन रात छोटे से प्रांगण की रखवाली करने के लिए भेजे गए थे, उन्होंने बिना देरी किए वापस भागने की हिम्मत नहीं की, अंदर के मालिक को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और सजा का जोखिम उठाकर और अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए प्रियतम के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह दोबारा चिल्लाने वाला था, जियांगी के पास खड़े लोगों ने उसका मुंह ढककर उसे नीचे खींच लिया। मत मरो, अंदर गुरुजी पड़ा रहे हैं प्रियतम, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? एक सबक प्रिय आदमी ने चारों ओर देखा और जल्दी से अपना मुंह हाथ से सील कर लिया। तुम क्या करने जा रहे हो? वापस आओ, प्रधानमंत्री पेई ने गुस्से में डांटा और पेई जुबान को अपने रास्ते में बाधाओं का सामना करना पड़ा। ये खूबसूरत पतंग आधे घंटे से अकेली हवा में उड़ रही है। बाई जी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। लड़की, वह आदमी अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम यथाशीघ्र यहाँ आओगे? क्या ये झूठ हो सकता है? वह आएगा। कुईती को रात का खाना खाने की कोई भूख नहीं थी, इसलिए वह दरवाजे के सामने पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गई और तब तक इंतजार करने लगी जब तक कि आकाश में तारे फैल न जाएं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि चांद बादलों के पीछे छिपने को मजबूर न हो जाए। हवा जोरों पर है, बिजली गिर रही है और वसंत की बारिश धरती को नम कर रही है। दिन सचमुच बहुत तेजी से बदल रहा है। छाता कुईती के सिर पर रखा हुआ था और सफेद कबूतर उसके साथ इंतजार कर रहा था। रुको, रुको, रात के पहले पहर तक रुको, रात के दूसरे पहर तक रुको, रात की बारिश रुकने तक रुको, आसमान सफेद होने तक रुको। बाई जी इतनी गुस्से में थी कि रोने वाली थी, लेकिन उसने ये वाक्य नहीं कहा कि पुरुष धोखेबाज सूअर के पैर होते हैं। उसने अपने मालिक को दिलासा दिया, वो जरूर आएगा, शायद उसे किसी और चीज ने पकड़ लिया हो। कुईती के निचले होंठ पर दांतों के निशान साफ दिख रहे थे। बारिश के कारण पतंग खराब हो गई है, चलो नई बनाते हैं। अच्छा है। मालिक और नौकर पूरे जोश में नई पतंग बना रहे हैं। दूसरी तरफ सूर्य परिवार है। सन सानलान को पता चला कि चित्र पेई जुबान ने छीन लिया है और अपने दूसरे भाई से पता चला कि उसकी होने वाली दुल्हन एक प्रतीकात्मक सुंदरता थी। वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया और शादी का प्रस्ताव रखने के लिए शिनिंगबो हवेली में श्रीमती सन को परेशान करने के लिए जाग गया। वह परिवार में सबसे छोटा बेटा है और वह सबसे पसंदीदा है, इसलिए उसे अंतहीन परेशान करना पड़ता है। श्रीमती सन भी सोचती है कि शादी को पहले ही तय कर लेना बेहतर है। सुनजी बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। जब उसे पता चला कि इस मामले में क्या गड़बड़ है, तब तक उसकी मां ने उपहार तैयार कर लिया था और दियासलाई बनाने वाले को कार से बाहर ले गई थी। छोटा सा आंगन, सूरज तेज है, नई बनी पतंगें आसमान में उड़ती हैं और हवा की विपरीत दिशा में खींचती हैं। बाय बाय, क्या धागा टूटा नहीं है? नहीं, सफेद कबूतर ने ऊपर देखा और कहा, यह अभी भी आसमान में तैर रहा है। कुईती को राहत मिली। उसे विश्वास नहीं था कि पेई जुबान नहीं आएगा। वह बस डरी हुई थी कि इस जीवन और पिछले जीवन के बीच बदलाव होंगे और पेई जुबान एक कदम पीछे रह जाएगी। प्रिय, जूते, किताब वाला लड़का उसके पीछे से जूते की एक जोड़ी पकड़े हुए चिल्लाया। पेई जुबान ने काठी पहनी और चला गया। शीजिंग, फुरोंग स्ट्रीट, दोपहर के करीब। सड़क पर ज्यादा पैदल यात्री नहीं है। एक सफेद घोड़ा सर पर दौड़ रहा है, जिसके पीछे धूल उड़ रही है। कौन है वो? ऐसा लगता है कि वह हमारे दा झाओ का सबसे युवा चैंपियन है। नंबर 1 विद्वान, पेई परिवार का बेटा, आदमी ने आश्चर्य से कहा। अब लगभग भोजन का समय हो गया है। नंबर 1 विद्वान क्या कर रहा है? वैसे, क्या तुमने सुना है? सन परिवार शिनिंगबो हवेली में शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा है। विवाह का प्रस्ताव? सन परिवार किसकी तलाश में है? उस आदमी ने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली और लोगों ने तुरंत समझ लिया और हैरान होकर पूछा, मिस कुई सान क्यों नहीं? श्री सन सानलांग युवा हैं और उनकी छवि खराब है। वे अभी भी एक आंख वाले और कामुक हैं। हो सकता है कि वह अंधा आदमी सुंदर हो। उस अंधे आदमी। सभी ने इस तरह चर्चा की। मार्च में यह एक सुंदर वसंत का दिन था, लेकिन हवा का एक झोंका कहीं से एक बड़े काले बादल को उड़ा ले आया। दक्षिण में एक एकांत छोटा सा प्रांगण, शिनिंगबो हवेली, उसके गालों पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुईती ने अपनी उंगलियां कस ली। बाय बाय, क्या फिर से बारिश होने वाली है? बाई जी बेचैनी से अपना सिर खुजलाती रही। कितना भयानक मौसम है।
अभी तो सूरज अभी भी ऊंचा था। कुईती का दिल डूबने से नहीं रुक रहा था। बारिश होने वाली है, फिर से बारिश होने वाली है। जब बारिश होती है तो उसकी पतंग उड़ नहीं पाती। पेई जुआनयांग अपने घोड़े पर सवार होकर सीधी फुरोंग स्ट्रीट से गुजर रहा था। हवा से उसके लंबे बाल उसके कानों के पास उड़ रहे थे और उसका लबादा लहरा रहा था। ज़ीजिंग स्वर्ग के पुत्र के चरणों में है। सड़क लंबी और चौड़ी है। दोपहर से पहले सड़क पर बहुत से लोग नहीं थे। अब बारिश होगी और सड़क पर कम लोग होंगे। घोड़े सर पर दौड़ने लगे। फुरोंग स्ट्रीट के बाद पेओनी स्ट्रीट है। पेओनी स्ट्रीट पर रहने वाली एक विधवा खिड़की बंद करने आए और सफ़ेद छाया चमकती हुई गुजरी। उसने घोड़े पर पेई जुबान को नहीं देखा, लेकिन बिना जूतों के बर्फ के मोज़ों में लिपटा एक पैर देखा। अजीब, बिना जूते पहने कोई दिन के उजाले में कैसे बाहर दौड़ सकता है। घोड़े के खुर फड़फड़ाने लगे और पेई जुबान, जो शिनिंग बोफू के नज़दीक था, घोड़े पर बैठ गया और दक्षिण की ओर देखने लगा। जैसी कि उम्मीद थी, उसने देखा कि एक पतंग हवा में अकेली उड़ रही थी। जब हवा चली तो पतंग पूर्व और पश्चिम की ओर उड़ गई और उसे खुशी महसूस हुई, फिर चिंता और बेचैनी हुई, और यह उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच गई जब उसने शिनिंगबो हवेली के सामने खड़ी गाड़ी को देखा। ज़ीजिंग में प्रत्येक परिवार की गाड़ियों पर उनके लोगो लटके होंगे ताकि वे बाहर एक दूसरे से न टकराएं। गाड़ी के कोने पर एक तांबे की घंटी सजी हुई है और तांबे की घंटी के किनारे सूर्य शब्द वाला एक छोटा झंडा लगाया गया है। पेई जुबान लड़खड़ा गया और अपने घोड़े से लुढ़क गया। मेंची ने जम्हाई ली और उसकी ओर देखा। उसे धूल से भरा हुआ देखकर, सुंदर दिखने वाली ये देखकर कि वह यहाँ नंगे पैर आए है, उसने तिरस्कार महसूस किया। ये शिनिंगबो हवेली है, आलसी लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। उसने लोगों को दूर भगाया, लेकिन पेई जुबान हाथ में कोड़ा लेकर दौड़ा। अरे, ये शिनिंगबो हवेली है, यह आपके जंगली दौड़ने की जगह नहीं है। सम्राट के नंबर एक विद्वान के छात्र, क्या तुम उसे रोक सकते हो? रास्ते से हट जाओ। उसने उसके चेहरे पर कड़ी फटकार लगाई। उसका परिवार विनम्र था और सबसे बड़ा अधिकारी जो उसने कभी देखा था वह उसका चाचा था। वह प्रधानमंत्री के दामाद की महिमा के सामने कैसे खड़ी हो सकती थी? जब वह अचंभित था, पेई जुबान तेजी से अंदर आया। उसने अपने जीवन में कभी भी कमजोरों को परेशान करने जैसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसने आज ऐसा किया। वह बचपन से ही अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती थी और कभी उनकी अवज्ञा नहीं करती थी, लेकिन कल रात उसने उनकी अवज्ञा की। घुटने में हल्का दर्द था। पेई जुबान ने हवा और बारिश से उड़ती पतंग को देखा, अपने दांत पीस लिए और कोई परिवार के नौकर को धक्का दे दिया जो उसके सामने खड़ा था। उसने इतना कुछ किया है और लड़की के साथ कस्में खाते हुए इतने वादे किए हैं, अगर समय रहते नहीं किया तो उसके पास अपने दिल की बात कहने के लिए कौन सा चेहरा है? कोड़ा जोर से नीचे गिरा और हवा में बिजली चमक उठी। काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। मुख्य हॉल में श्रीमती काउंट शिनिंग कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। काउंट शिनिंग मुख्य सीट पर बैठे थे और मूल रूप से उनकी अनदेखी कर रहे थे। श्रीमती सन और श्रीमती सन दोनों जूनियर की शादी पर चर्चा कर रहे थे। सूर्य के परिवार द्वारा आमंत्रित मैचमेकर ने बेतहाशा बातें की तथा सूर्य सानलान को, जो अपनी वासना के कारण एक आंख से अंधा था, एक प्रिय प्रेमिका के रूप में वर्णित किया। उसकी बातें सुनकर काउंट शिनिंग को लगने लगा कि बाजार में चल रही अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कम से कम जिस सन सानलान को उसने देखा वह विनम्र और सुंदर थी। कम से कम वह पनकियान परिवार की उपपत्नी की तुलना में आंखों को अधिक सुखद लग रही थी। दोनों पक्ष इस विवाह में रुचि रखते हैं, केवल श्रीमती काउंट शिनिंग ही जो को लेने के लिए अभी भी मौजूद हैं। सुन सानलान को भावी सास से नफरत थी जो शेर की तरह मुंह खोलती थी, और वह इतनी चिंतित थी कि वह अपनी मां से आंख मारती रही कि श्रीमती सुन ने दहेज में अतिरिक्त 10% का प्रस्ताव रखा। चाचा और मैंने सन परिवार की ईमानदारी देखी है। श्रीमती काउंट शिनिंग ने ईमानदारी से मुस्कुराया। तो फिर यह शादी? चाचा और मैं सहमत हो गए। मैं सहमत नहीं हूँ। जमीन पर गड़गड़ाहट हुई। श्रीमती सुन और श्रीमती काउंट शिनिंग ने उसी समय दरवाजे के बाहर खड़े कियाओ प्यारी को देखा। नौकरों ने डर और घबराहट में अपने मालिक के सामने कबूल किया। काउंट शिनिंग आश्चर्यचकित था उस व्यक्ति को खड़े देखकर। पेई जुबान ने अपनी घुड़सवारी की चाबुक रख दी, अपने कपड़े झाड़ दिए और दरवाजे के अंदर चला गया। आसमानी नीला लबादा, गंदे काले बाल, जमीन पर रखे मैले सफेद मोजे, कमर पर नर्म चाबुक और हवा में बेल्ट। श्रीमती काउंट शिनिंग पिछवाड़े में रहती हैं और अपनी पहचान नहीं जानती हैं। काउंट शिनिंग कैसे नहीं जान सकती कि वह कितनी मूल्यवान है? पिछले कुछ वर्षों में ज़ीजिंग का सबसे सुंदर बेटा कौन है? पेई परिवार का बेटा दूसरा है। कौन पहला होने की हिम्मत करता है? इस तरह के एक उत्कृष्ट प्रिय यहाँ अस्त व्यस्त कपड़ों में आए
और काउंट शिनिंग पेई जुआन से मिलने के लिए दौड़े। इससे पहले कि घर की महिला ने उन्हें फटकार लगाई, नौकरानी कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे आशा है कि पेई प्रिय को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। बेप्रिय। श्रीमती काउंट शिनिंग की तीखी भौहें और आंखें कोमल हो गईं और उन्होंने अपने होठों पर आए शब्दों को निगल लिया। श्रीमती सन को अचानक एहसास हुआ, उनकी आंखें कुछ अधिक विस्मय से भरी हुई थीं। सन सानलांग को सुंदरियां बहुत पसंद हैं। वह पुरुषों और महिलाओं दोनों से प्यार करता है और वह इसके बारे में विशेष नहीं है। पहली बार जब उसने पेई जुआन को देखा तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने वाली थी, चमकती और चकाचौंध। ये पेई परिवार का बेटा है। मशहूर होने से बेहतर है मिलना जुलना। जूनियर पेई जुआनजुन ने काउंट जिनिंग और उनकी पत्नी से मुलाकात की। वह सौम्य और सुरुचिपूर्ण थे। भले ही उन्होंने जूते नहीं पहने थे, फिर भी वो जिजिंग में अग्रणी प्रतिभा थे। काउंट शिनिंग को उसकी विनम्रता पसंद है। जीजिंग जुंगुई को उच्च की प्रशंसा करना और निम्न को निराश करना पसंद है। कुछ वर्षों तक रौंदे जाने के बाद वह अभी भी उज्ज्वल भविष्य के साथ चैंपियन की दया प्राप्त कर सकता है। वह बहुत खुश है। प्रिय ने अभी कहा नहीं, क्यों नहीं? मैं कुई के माता पिता और बेटी को सुन सानलांग से पत्नी के रूप में विवाह करने की अनुमति नहीं देता। श्रीमती काउंट शिनिंग की पलकें एक महिला के अंतर्ज्ञान से जोर से फड़क उठी। उत्साह को देखते हुए और अपना सिर देखते हुए सन सानलांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। भाई पेई जल्दी से यहाँ आया। क्या वह यहाँ एक चुंबन छीनने के लिए है? वह कौन सी सुंदरी होगी जो पेई जुआन को इतना नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दे? वह जाने नहीं देना चाहता। वह उस अंधे आदमी से शादी करने जा रहा है। एक बच्चे को जानना एक माँ की तरह है। श्रीमती सन अपने सबसे छोटे बेटे के मन को कैसे नहीं जान सकती। बार बार तौलने के बाद उसे यकीन हो गया कि प्रधानमंत्री अपने बेटे को एक अंधी लड़की से शादी करने की इजाज़त नहीं देंगे। फिर उसने देखा कि पेई जुआन के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास अपने जूते पहनने का भी समय नहीं था और वह बाहर भाग गया। इससे पहले मैंने काउंट जिनिंग और अपनी पत्नी के साथ एक मौखिक समझौता किया था। मेरे माता पिता ने मेरे पोते के परिवार को कार्यभार संभालने का आदेश दिया था, तो पेई बेवच के पास क्या है? मेरे पास एक पतंग है। उसकी आंखें जल रही थीं, मानो वह सबसे सत्य वचन बोल रही हो जो केवल एक संत ही बोल सकता है। पतंग। वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति इसे समझ नहीं सका। काउंट शिनिंग को पहले सहमति देने पर पछतावा हुआ। अगर उन्हें पता होता कि इस व्यक्ति को दिलचस्पी है तो पतंग की बात तो दूर, वह खुशी खुशी अपनी सबसे बड़ी बेटी को घास का एक टुकड़ा भी भेंट कर देते। श्रीमती काउंट शिनिंग को इस बात का बहुत अफसोस था कि उनकी आंतें हरी हो गई थीं और उनका दिल कॉप्टिस चाइनेंसिस खाने से भी अधिक कड़वा था। सन सानलांग ने गर्व से कहा, भाई पेई, एक सज्जन व्यक्ति वह नहीं लेता जो दूसरों को पसंद हो। तुमने पहले मेरी मंगेतर का चित्र लूटा था और मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकाया है। आप किसे गिनने जा रहे हैं? तुम उस बूढ़े आदमी से हिसाब क्यों नहीं चुका देते? हवा और बारिश के बीच से एक मोटी और शक्तिशाली आवाज आई। काउंट शिनिंग अचंभित रह गया और बुरी जुबान से बोला, पेई, प्रधानमंत्री पेई। एक देश के प्रधानमंत्री काउंट शिनिंग के भवन में आए और काउंट शिनिंग और उनकी पत्नी ने उनके सामने झुककर प्रणाम किया। ये देखकर कि सबसे छोटा बेटा अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से ओक स्टंप से चिपका हुआ था, श्रीमती सन ने उसकी पतलून की टांगें खींची और यह महसूस करने के बाद कि जियांगे के शब्द उसके लिए आ रहे थे, सन सानलांग ठंडे पसीने से तर हो गया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया और वह अपने घुटनों पर बैठ गया। पेई जियांगे, जो 40 साल से अधिक उम्र के थे, भी एक कियाओइरलांग थे जो युवावस्था में जीजिंग में लोकप्रिय थे। कियाओइरलांग एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे जो एक शक्तिशाली अधिकारी और विस्मयकारी गति के साथ थे। जैसे ही वह दिखाई दिए, उन्हें माउंट ताई के शीर्ष की तरह एक असहनीय दबाव महसूस हुआ। उन्हें व्यक्तिगत रूप से आते देख पेई जुआन ने असहजता से पिता कहकर पुकारा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री पेई ने असंतुष्ट भाव से उनकी ओर देखा। जूतों की एक जोड़ी पकड़े हुए किताब वाला लड़का जल्दी से जियांगे के पीछे से खड़ा हो गया और प्रियतम को जूते परोसने लगा। एक अन्य नौकरानी पेई जुआन के अस्त व्यस्त बाल और टेढ़ी जेड बैट को ठीक करने के लिए आगे आई। पेई रुफेंग ने अपनी बड़ी आस्तीनें उतारी, मुख्य सीट पर बेपरवाही से बैठ गए और भारी भौहों के साथ एक या दो के सिरों की ओर देखा। मेरे बेटे के पास भी अपने माता पिता के आदेश और एक मैचमेकर के शब्द हैं। पेई जुआन ने अचानक अपना सिर उठाया और आश्चर्य से उन्हें पिता कहकर पुकारा, जिससे प्रधानमंत्री को गुस्सा आने लगा और साथ ही हंसने का भी मन हुआ। सरकारी मीडिया से शिरान अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़े हुए बाहर चली गईं।
ये पहली बार था जब उसने किसी को विवाह का प्रस्ताव देते हुए देखा था और उसने महिला के माता पिता से घुटने टेककर उसकी बात मानने को कहा था। प्रधानमंत्री निवास के लोगों ने बिना कुछ कहे उसे यहाँ गिरफ्तार कर लिया। उसके कई सालों के मैचमेकिंग अनुभव के साथ ये देखना असंभव नहीं है कि पेई बेवड ईमानदार है। पेई प्यारी ईमानदारी से चली गई। जियांगी के पास केवल उसका बेटा था, चाहे वह अंधा, लंगड़ा, बहरा या मूर्ख था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बेटा खुश था। मिस्टर जियांग से पूछने की हिम्मत करो, मिसेज काउंट शिनिंग ने अपने डर को दबाते हुए पूछा। मेरे चाचा और मेरी 2 बेटियां हमारे घुटनों के नीचे हैं। मुझे नहीं पता कि मिस्टर जियांग चाहते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री पेई ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और अपने बेटे की ओर देखा, जो कुछ ब्लॉक दूर अपना चेहरा खो चुका था। पेई जुआनवेन ने धीरे से कहा, मैं चाचा की सबसे बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जो दक्षिण यांगन में रहती है। उसने विशेष रूप से दक्षिण प्रांगण में रहने की ओर इशारा किया। उसे पहले नहीं लगता था कि यह कोई समस्या थी, लेकिन अब काउंट जिनिंग का बुरा चेहरा गर्म है। अच्छी लड़कियों का एक परिवार सैकड़ों परिवारों की मांग करता है। एक अंधा आदमी भी जीजिंग में प्रसिद्ध पेई परिवार को आकर्षित कर सकता है। श्रीमती काउंट जिनिंग ने चुपके से आह भरी कि कुईती को बड़ी किस्मत मिली है और काउंट जिनिंग की हवेली के भाग्य पर और भी अधिक विलाप किया। पेई परिवार में शादी, यहाँ तक कि घुटने टेककर बाहर खड़े कई लोगों की तुलना में अधिक ऊंची है। श्रीमती सुन का शरीर भूसे की तरह कांप रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि प्रधानमंत्री एक अंधे व्यक्ति की शादी अपने दामाद से कराने के लिए कैसे राजी हो सकते हैं। वह ये भी नहीं समझ पाई कि पेई लांगजुन, जो लगभग पूर्ण पुरुष था, एक अंधे आदमी से प्यार क्यों कर बैठा। दूसरों को शर्म आती है, वह मानते हैं। इसे एक खजाना मानते हुए कुछ लोग चाहते हैं कि वे यहाँ से दूर रहें, यहाँ तक कि बारिश में घोड़े पर सवार होकर यहाँ आएं। श्री जियान के नेतृत्व में यह विवाह स्पष्टतः सुचारू रूप से संपन्न हुआ। ठीक है, तुम लोग उठ जाओ, घुटने टेकना कितना भद्दा है। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद काउंट शिनिंग और उनकी पत्नी ने अपने उत्साह को दबाने का साहस किया और डर के मारे खड़े हो गए, जिससे श्रीमती सुन और उनका बेटा वहीं घुटनों के बल बैठे रह गए। पेई रुफेंग की याददाश्त अच्छी है और वह अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रहा था जो उसकी बेटी के साथ हिसाब चुकता करना चाहता था, इसलिए उसने अचानक कहा, सन सानलांग, ये तुम हो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, मूत्र की गंध फैल गई। सन सानलांग डर के मारे चिल्ला उठा। मूत्र की गंध बहुत तीव्र थी और प्रधानमंत्री पेई ने हिसाब बराबर करने की इच्छा खो दी और अपनी नाक को रुमाल से ढक लिया। ये सज्जनता का अपमान है, इसे लंबा मत खींचो। श्रीमती सुन ने अपने बेटे को हताश होकर गले लगा लिया और सुन सानलांग एक नर्म पैर वाले झींगे में बदल गया। कोलाहलयुक्त प्रधानमंत्री पेई अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ आए और शादी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए यहाँ रुकने का समय नहीं मिला। जाने से पहले उन्होंने शादी की तारीख तय की और अपने अविवाहित बेटे को जल्दी से घर ले आए। देखो ना, तुम इस दिन का इंतजार नहीं कर सकते। उसका चेहरा गंदा था और उसका वास्तव में पेई जुबान से कोई लेना देना नहीं था। पहले घर जाओ, तुम्हारी माँ ने एक डॉक्टर से तुम्हारे पैरों को देखने के लिए कहा है और तुम भविष्य में एक अधिकारी बनोगे और तुम अभी भी इस तरह से खिलवाड़ करते हो। लंबे समय से पहले जीजिंग में हर कोई जानता था कि तुम पेई प्रिय अव्यवस्थित हो और एक चुंबन छीनने के लिए आए हो। पेई जुबान ने अंततः हवा में उड़ती हुई उस अस्थिर पतंग पर नजर डाली और कार का पर्दा नीचे किया। पिताजी, भविष्य में एक और व्यक्ति आपको और एनियांग को सम्मानित करेगा। पेई रुफेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसने पेई जुबान के कमजोर शरीर को थपथपाया। बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। काफी देर तक हवा में लटकी रही पतंग अंततः हवा और बारिश को सहन नहीं कर सकी और नीचे गिर गई। बाई जी का दिल पेई बेवॉच के प्रति गुस्से से भरा है। क्या उसकी लड़की को छेड़ना वास्तव में इतना मजेदार है? एक अंधी लड़की को क्यों छेड़ना जो उसका इंतजार कर रही थी? क्या उसकी लड़की काफी गरीब नहीं है? उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बगल की ओर मुड़ी और अपनी आस्तीन से आंसू पोंछने लगी, कोशिश कर रही थी कि कुईती को उसका रोना सुनाई न दे। बाय बाय, क्या पतंग अभी भी वहां है? हाँ, अभी भी। बाई जी कीचड़ में फंसी पतंग को देखकर दंग रह गई और बोली, बेटी, इस बार हमने जो पतंग बनाई है वह वाकई बहुत अच्छी है और अभी भी लटकी हुई है। कुईती को अच्छी तरह पता था कि वह किस प्रकार की व्यक्ति है, वह किस मूड में है तथा उसकी आवाज का लहजा कैसा है। उसने अनुमान लगाया कि पतंग फिर टूट गई है। लड़की, उसे बहुत देर तक चीखते देखकर बाई जी ने अपराध बोध से कफ का ढीला धागा खींच दिया। आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं,
अगर पतंग टूट गई है तो हम दूसरी बना लेंगे। बैच कल उसके साथ इंतजार कर रहा था। जब तक सूरज डूबता है, जब तक चांद उगता है, जब तक आसमान साफ नहीं हो जाता, जब तक बारिश नहीं होती, वो वास्तव में अब और इंतजार नहीं कर सकती। बेटी, अगर वह तुमसे झूठ बोल रहा है तो क्या हम अभी भी पतंग बनाएंगे? जो कोई भी पतंग को घोड़े पर सवार देखता है वह यहाँ भागकर आता है। भले ही वह ज़ीजिंग शहर छोड़ दे, लेकिन इतने लंबे समय के बाद उसे यहाँ भागकर आना चाहिए था। कुईती ने अपना सिर हिलाया। वह आएगा पतंग, हमें अभी भी यह करना है। बैच ने अपने बालों को खुजलाया और थोड़ी देर बाद वह पतंग के लिए कुछ तैयार करने मुर्गी के घोंसले की ओर चली गई। कंकाल बमुश्किल ही स्थापित हो पाया था और कुईती की तर्जनी और मध्यमा उंगली पर छोटे छोटे निशान थे। ये दृश्य देखकर बाईजी को पेई जुबान से इतनी नफरत हो गई कि उसे आना ही था, नहीं तो वह उसे सपनों में ही डांटकर मार डालती। व्यर्थ। कुईती थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, वह आएगा, उसे अपने दिल में चुपके से मत डांटो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बाईजी इतनी क्रोधित थी कि बांस के चाकू ने लगभग उसका हाथ काट दिया और खिड़की के बाहर गंदगी की गंध की एक गहरी सांस ली। मिस, यह पागलपन है। ठीक है, वह आएगा। लड़की ने कहा है कि वह आएगा और वह निश्चित रूप से आएगा। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि पेई जुबान अपनी बात रखेगा। सुदूर और उजाड़ दक्षिणी प्रांगण वास्तव में बारिश के बाद मशरूम की तरह हो गया। बहुत से लोग अचानक से आ गए, उनमें से अधिकांश दरवाजे पर बधाई देने आए थे। सफेद कबूतर लोगों से घिरा हुआ था। पेई जुबान के बेवकूफ हंस ने कहा कि यह नहीं आएगा। उसकी लड़की दंग रह गई। इसमें खुश होने की क्या बात है? बहुत खुशी, बहुत खुशी। आदमी सफेद कबूतर के ऊपर से कूद गया। मैं लड़की से बात करने जाऊंगा। बारिश के बाद मौसम साफ हो गया और सफेद कबूतर के बिना कुईती ने अकेले ही पतंग उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये ठीक से नहीं हो रहा था। ओह, तुम क्या कर रही हो लड़की? सावधान रहो। उत्तरी प्रांगण की ओर भागने में सबसे अधिक मेहनती महिला ने अतिशयोक्ति से चिल्लाया और कुईती लगभग सदमे में गिर गई। बाईजी को सिरदर्द हो रहा था। उसे लगा कि ये लोग जानबूझकर परेशानी पैदा करने आए हैं और वह मास्टर की मदद करने के लिए दौड़ी। आप भविष्य में नंबर 1 विद्वान की पत्नी होंगी। मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। क्या पेई बेवॉच को आपके साथ उड़ने देना अच्छा नहीं है? बाईजी ने जब पेई बेविल्ड शब्द सुना तो वह भड़क उठी, लेकिन कुईती शांत थी और उसने कांपती आवाज में पूछा, मैडम चैंपियन, ये सही है? पेई परिवार का सबसे बड़ा बेटा बारिश में यहाँ आया, अपने जूते पहनना भूल गया, हाथ में कोड़ा लेकर हवेली में घुस गया और अपने चाचा और पत्नी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। बाद में प्रधानमंत्री भी आए और शादी की तारीख 5 मई तय की गई। आप इस छोटे से आंगन में रहकर पूरे परिवार के सबसे सम्माननीय स्वामी बन गए हैं। वह विनम्रतापूर्वक मुस्कुराए। दास यहाँ है, मैं इससे बहुत खुश है। फैंग शुई ने बारी बारी से काम किया और देखते ही देखते सुनसान और एकांत दक्षिण प्रांगण शिनिंगबो हवेली में सबसे प्रशंसनीय स्थान बन गया। उनकी लड़कियां भी असली गुरु बन गईं, जिनकी दूसरों ने प्रशंसा की। उन्होंने बधाई देने और चापलूसी करने आए लोगों की लहरों को दूर भगा दिया। यह एक सपने जैसा है, लेकिन भगवान के पास वापस नहीं जा सकता। उसने अपना चेहरा भींच लिया, दर्द महसूस किया और उसकी भौहें और आंखें खुशी से चमक उठी। लड़की, ये सच है? क्या तुमने सुना कि उन्होंने क्या कहा? लड़की नंबर 1 विद्वान की पत्नी बनने जा रही है और पेई परिवार की युवती की पत्नी। बाईजी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कुईती के लिए खुश थी और उसके भविष्य के लिए भी खुश थी, जो अब उदास और निराशाजनक नहीं है। पेई बेवॉच एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा आदमी जो अपनी बात रखता है। मैं उसे फिर कभी नहीं डांटूंगा। बारिश के बाद हवा ताज़ा और नम है। वसंत की हवा फूलों की खुशबू में लिपटी हुई है और सफ़ेद कबूतरों के शब्द आकाश में पेई जुबान की प्रशंसा करने वाले हैं। उसकी राय में अपनी लड़की को नापसंद न करना और अपनी लड़की को देखने में सक्षम होना अच्छा है। एक दूरदर्शी आदमी और पेई प्रियम जिसने कुईती से विवाह किया है, वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। मैंने आज अपनी आंखें खोली हैं। पहले इन लोगों की आंखें आसमान की ओर बड़ी होती थीं और इनके मुंह बदबूदार और कठोर होते थे। अगर वे हिम्मत करते तो आज भी अच्छी बातें कहते। ये सब जपने के बाद उसने अथक रूप से कुईती के कान में पेई जुबान की शादी को छीनने की पराक्रम को दोहराया, जैसे कि उसने वास्तव में उपस्थिति और स्थिति देखी थी और वह उस बूढ़ी औरत से बदतर नहीं थी जो उसे बधाई देने के लिए बाहर आई थी। कुईती ने 1-2 बार उसकी बात सुनी और 7वीं बार धैर्य और कोमलता से सुनी। उसकी भौहें थोड़ी टेढ़ी थी, उसकी आवाज़ नर्म थी
और वह असहाय देख रही थी। बाय बाय, तुम थकी क्यों नहीं? क्या अद्भुत बात है, गुलाम क्यों थकेगा? उसके नाजुक चेहरे की विशेषताएं इतनी खुश थीं कि वे उसके चेहरे से बाहर निकल गईं। उसके कूल्हे कप्पी के साथ वह काफी प्यारी थी। दास थकते नहीं है और लड़कियों को थकने की अनुमति नहीं है। कुईती के और कुछ कहने की प्रतीक्षा किए बिना उसने चंचल स्वर में कहा, ओह, आप दोषी हैं। आप चैंपियन महिला से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? उसने अपने मुंह पर ऐसे थप्पड़ मारा जैसे वह कुईती को चिढ़ा रही हो। कुईती नंबर 1 विद्वान से इतनी शर्मिंदा थी कि वह क्रोधित हो गई और उसे अनदेखा करना गलत था। गंभीर हो जाओ, क्या तुम बेकार हो और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? काम पर जाओ। कबूतर हंसा। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास करने के लिए बहुत काम था, क्योंकि अच्छी खबर छोटे से टूटे हुए आंगन में उड़कर आई थी। कमोबेश सभी लोग जो दरवाजे पर आए थे उपहार लेकर आए थे। यह ऐसा व्यवहार है जिसका आनंद उन्होंने पहले कभी नहीं उठाया। केवल इसी मामले के लिए बाईजी ने हाथ में मौजूद महत्वपूर्ण काम पूरा किया। टूटी हुई नीली ईंटों को जोड़ा और दीवार के आधार पर 2 बार चक्कर लगाया। इसके बजाय उसने सीधे उस क्षेत्र की परिक्रमा की जहां पेईजुबान दीवार से गिर गया और जमीन को छू गया, और उसने चैंपियन को कुशन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पुआल की चटाई को भी कबूल कर लिया। यह एक सुंदर नाम है, लड़की और प्रेमी के बीच मुठभेड़ का सुंदर गवाह रखने के लिए। कुईती ने उसे जाने दिया और दरवाजे के सामने पत्थर की सीढ़ियों पर घुटने मुड़कर अकेली बैठ गई। पत्नियां उत्साह से दौड़ी और उसके कानों में फुसफुसाने लगी कि कैसे पेईजुबान ने शादी चुरा ली। उसका बायां कान अंदर गया और दायां कान बाहर आ गया। उस समय उसका मन मैं इस व्यक्ति से फिर से शादी करने जा रही हूं कि जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। एक शब्द भी नहीं सुन पा रही थी। उसने वे सभी 7 बार सुने जब बाईजी ने ये कहने का कष्ट किया। सूरज बिल्कुल सही था और आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष लटक रहा था। कुईती ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और राहत की लंबी सांस ली। उम्मीद है कि वह और पेईजुबान इस जीवनकाल में एक साथ लंबा समय बिता सकेंगे। पिछले जन्म में तो उसने उससे प्रेम नहीं किया था, इस जन्म में क्या? वह फिर से पेईजुबान के बारे में सोच रही थी। बहुत विचार विमर्श के बाद भी यह समझ नहीं आया कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा है। वह उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसे एक खूबसूरत जैद की तरह संजोता है और उसे एक उज्ज्वल चांद के रूप में मानता है। मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन आसमान में ऊंची उड़ान भर रही पतंग की वजह से मुझे बारिश के बावजूद यहाँ आना पड़ता है। यदि आप उससे प्यार नहीं करते तो उससे शादी क्यों कर रहे हैं? बाहरी लोगों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कुईती ने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि बाहर के लोग कैसे बात कर रहे हैं। जुओ ने बस इतना कहा कि वह भाग्यशाली थी और पेईजुबान उलझन में थी। जीजिल में इतनी सारी कुलीन लड़कियां हैं जो उन्हें नहीं चाहती और एक अंधे आदमी से शादी करने आती हैं। पेईजुबान की हैसियत से एक तुलनीय परिवार की कुलीन बेटी से शादी करने की बात तो दूर, राजकुमारी शान भी उसे पाने के लिए बहुत उत्सुक है। वह पेईजुबान से मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में लोग लोगों को कमल के तालाब में धकेल देते थे। हो सकता है कि किसी ने रास्ते में आकर किसी का रास्ता रोक दिया हो। पेईजुबान की प्रशंसा करने वाली लड़की अपनी आंखें बंद करके 10 या 8 गिन सकती है। उसने इसके लिए पेईजुबान को भी आजमाया और जब वह वापस आई तो पेईजुबान ने उसे बहुत ज्यादा सोचने के लिए हंसाया। जिस समय वह सबसे अधिक ईर्ष्यालु थी, उसी समय पेईजुबान सबसे अधिक खुशी से हंसा था। उसने उसे पीछे से गले लगाया और कुईती के कानों में ताज़ी सांसें फड़फड़ाने लगी। उसके पास आम आदमियों की पसीने की गंध नहीं थी, जिसके बारे में बेगे ने कहा था कि चाहे जितनी भी बार धोई जाए उसे धोया नहीं जा सकता, और वॉकेट उंगलियों वाले कुछ लड़कों की तरह पाउडर और पाउडर की गंध नहीं थी। साफ झरने का पानी उसे धीरे से ढंक रहा था। वह प्रेम के अधिक मीठे शब्द नहीं बोल सकता। वह अच्छा व्यवहार करता है, और यदि वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है तो वह मूर्ख दिखता है। शायद वह खुद भी जानता है कि वह मूर्ख है, इसलिए जब वह उसे फुसलाता है तो अपनी पतली बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटता है ताकि वह भाग न सके, और धीरे से उसके कानों को छूता है। गुस्सा मत हो, नाराज मत हो महिला। शब्द मधुर और कोमल हैं, उनमें जरा भी छिछलापन नहीं है। हर बार जब कुईती को फुसलाया जाता है तो वह झुंझलाहट की एक और परत में प्रवेश कर जाती है। पेईजुबान की लापरवाह किशोरावस्था बहुत छोटी थी और वह युवा होने पर ही एक अधिकारी बन गया था, इसलिए वह अपने साथियों की तुलना में अधिक तर्कसंगत और परिपक्व था। प्रधानमंत्री के पुत्र और देश के भावी स्तंभ के रूप में वे लगातार आगे बढ़े हैं। स्थिरता में पदोन्नति की गति इतनी तेज है कि असंख्य लोग प्रशंसा और ईर्ष्या करते हैं। जाहिर है कि वह कुईती से कुछ महीने छोटा है,
लेकिन कुईती ही वह है जिसकी सुरक्षा वह कर रहा है। चुनचैन की तुलना में, जो कुछ वर्षों बाद लोकप्रिय हो जाएगा, कुईती को पेई जुबान पसंद है जो दीवार से गिर गया था और उसे बिना जूतों के बाहर भागना पसंद है। इस तरह का पेई जुबान ताज़ा और जीवंत है, जैसे कि बहुत सारे बोझ को छोड़ देना। यह आराम और आकर्षक है, न कि मीठा और खट्टा पति जिसने कुईती को अपने सपने में लाभ और हानि के बारे में चिंता करने के लिए सिखाया, एक असंतुलित दिल की धड़कन के साथ। ऐसा लगता है कि जो कुछ छूट गया है वह फिर से शुरू हो सकता है। ये सब फिर से करने के लिए कुईती उसके साथ संभोग करना चाहती है। लड़की अतीत और वर्तमान के विचारों के माध्यम से सफेद कबूतर की आवाज कुईती के कानों में आई। उसने अपना सिर उठाया और आंखों पर बंधी सफेद पट्टी रोशनी से चकाचौंध हो गई। श्रीमती काउंट शिनिंग कुछ कदम दूर खड़ी अजीब निगाहों से देख रही थी। तुम्हारा भाग्य आ गया है, क्यों न मैं तुम्हें सिखाऊं कि क्या करना है। कुईती ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं सचमुच नहीं जानती कि यह रूप किसी पुरुष को कैसे आकर्षित कर सकता है। श्रीमती शिनिंगबो ने गहरी आवाज में उसका जिक्र किया। एक बार जब आप हो परिवार में प्रवेश करते हैं तो यह समुद्र की तरह गहरा होता है। हालांकि पेई परिवार एक हो परिवार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री पेई के पास लॉर्ड हो से अधिक अधिकार हैं। प्रधानमंत्री पेई केवल यही बेटा है। पेई परिवार आपको पसंद करता है और आपको पसंद करता है। उससे शादी करने के बाद आपको उसकी अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। तुम्हारे पिता और मैं तुमसे कोई अनुग्रह नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम परेशानी पैदा न करो और परिवार पर मुसीबत न लाओ। बाई जी ने अचानक अपनी आंखें उठाईं। ये सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि यह कुछ ऐसा था जो उसकी मां कह सकती थी। कुईती ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी प्रतिक्रिया उदासीन थी। दक्षिण प्रांगण आपके रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब से आप पेई परिवार की एक कुलीन महिला होंगी। आज से आप चेंजियांग प्रांगण में वापस रहेंगी ताकि बाहरी लोग गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी न करें और न कहें कि मेरा दिल पक्षपातपूर्ण है। जानता था वह 3 छड़ियों से भी पाद नहीं मार सकती और वह अपनी छोटी बेटी से बेहतर नहीं है जो अच्छी तरह बोल सकती है और लोगों को खुश कर सकती है। श्रीमती काउंट जिनिंग ने उसे देखते ही गुस्सा हो गई। जो कहना चाहती थी कह दिया, उठकर चली गई। कुईती कमजोर थी और अपने जीवन के पहले 3 साल तक वह शिनिंगबो हवेली के सबसे अच्छे माहौल में चेंजियांग कोर्टयार्ड में रही। 3 साल बाद उसे बांट दिया गया और दक्षिण कोर्टयार्ड में फेंक दिया गया, जो कि बकवास नहीं है। श्रीमती शिनिंग के शब्दों के अनुसार वह पेई जुबान की मदद के कारण चेंजियांग आंगन में वापस जाने में सक्षम थी। यदि वह पेई परिवार की कुलीन महिला नहीं बन सकती तो उसके पास अभी भी सबसे बड़े और सबसे अच्छे आंगन में रहने की योग्यता नहीं है। बाई जी लड़की के लिए लड़ता है, लेकिन चूंकि उसकी पत्नी लड़की की जैविक मां है, इसलिए वह कुछ शब्द ही रोक पाती है। वह उदास होकर वहीं खड़ी रही और कुईती ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि वह क्या सोच रही है और हल्के से मुस्कुराई। क्या अब इसकी आदत डालने का समय नहीं आ गया है? सामान समेटो, चलो चेंजियांग कोर्टयार्ड चलते हैं। इसका अर्थ है जाओ, वापस जाओ। नहीं, दूसरी बहन की मृत्यु हो गई। उसके बाद चेंजियांग प्रांगण अब उसका नहीं रहा। मार्च का महीना चल रहा है और यदि आप मई में भव्य शादी करना चाहते हैं तो न केवल शिनिंगबो हवेली को गहन तैयारियां करनी होंगी, बल्कि पेई हवेली को भी अपनी गति बढ़ानी होगी। सौभाग्य से पेई जुबान की शादी पहले से ही योजना में थी और इसमें जल्दबाजी नहीं की गई। श्रीमती पेई अपने बेटे के साथ व्यस्त थी और इस शादी के कारण जीजिंग शहर को उड़ा दिया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि पेई जुबान पागल थी और कुछ ने कहा कि जिनिंगबो की हवेली किस्मत से बाहर थी। पेई जुबान की प्रशंसा करने वाली कुलीन महिलाएं गुप्त रूप से एक अंधी लड़की से ईर्ष्या करती थी और जिज्ञासु लोग आश्चर्यचकित होने लगे कि कोई परिवार की अंधी लड़की पिंगटिंग का प्रतीक कैसे थी। प्रधानमंत्री पेई खुद अपने दामाद के लिए शादी का प्रस्ताव रखने के लिए दरवाजे पर आए और फिर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। अंदाजा लगाओ, सुनसान इतने प्रिय थे कि उन्होंने डर के मारे पेशाब कर दिया और प्रधानमंत्री के लोगों ने उन्हें सीधे बाहर खींच लिया। अरे कितना दुखद शब्द है। सुनसानलान किस तरह का व्यक्ति है और पेई प्रियतम किस तरह का व्यक्ति है। जुगनू की रोशनी उज्ज्वल चंद्रमा के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है। हालांकि मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि हमारे नंबर 1 विद्वान को अपनी पत्नी को छीनने के लिए अपने जूते पहनने का भी समय नहीं मिला। वह एक तेज घोड़े पर भाग गया और काउंट जिनिंग की हवेली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। चाबुक हवा में टूट गया और बारिश ने उसके कपड़ों को दाग दिया। श्रीमती काउंट जिनिंग के सामने उसने उग्र भावना के साथ शादी करने का इरादा व्यक्त किया। कोई वादा नहीं का एक शब्द और दक्षिण प्रांगण में रहने वाली एक लड़की का एक शब्द
ये वो उत्कृष्ट आचरण है जिसके कारण हमारा जीजिंग हाओएलान प्यार करने और शादी करने का साहस करता है। सन सानलान, वह एक बेवकूफ़ है, वह सिर्फ एक महिला प्रेमी है। तेई जुबान, शिजिंग में सुप्रसिद्ध, युवा और प्रतिभाशाली, दा झाओ में सबसे कम उम्र के नंबर 1 विद्वान हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह घोड़े को कोड़ा मारती है और नियुक्ति के लिए दौड़ती है, उसकी वजह से कुईती एक दुखी अंधे व्यक्ति से एक ऐसे पहले प्यार में बदल गई है जिसे चैंपियन एक दिन के भीतर नियंत्रित नहीं कर सकता है। सॉन्ग जिजेन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, कौन हमें इतना गुस्सा दिला सकता है? यह उस दिन पेंटिंग में लड़की निकली। तसक तसक तसक, जब आप भावुक होते हैं तो यह अलग होता है। झेंग वूजी भी वहां थे। तस्क तस्क, नंबर 1 विद्वान अपने मोजे पहने हुए हवेली में घुस गया और साहपूर्वक उससे प्रणय निवेदन किया। यह आश्चर्यजनक है, यह आश्चर्यजनक है। इस विषय में दूसरा स्थान और तानहुआ ने चैंपियन को दफनाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया जो उनसे छोटा था। तेई जुबान मुस्कुराया और उनकी परवाह नहीं की। उसकी कोई और बुरी आदत नहीं है, सिवाय इसके कि जब वह खुश होती है तो वह शराब पीती है और जब वह दुखी होती है तो भी वह शराब पीती है। मधुर नाशपाती के फूल उसके गले में भर गए थे और उसकी आंखें कोमल थीं। अयो अयो, मैं इसे और नहीं ले सकता। जिंगबुआन, तुम अपना बहता हुआ आकर्षण वापस ले सकते हो। सॉन्ग जिजेन ने अपने दिल को अपनी बाहों में लेकर चिल्लाया, अस्पष्ट रूप से। उन्होंने और झेंग वूजी ने एक साथ गाया। तेई जुबान शांत और अप्रभावित था। फैंग ही की आकर्षक आंखों ने सोंग जिजेन को देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। सोंग जिजेन शांत हो गया। यह अच्छी बात है कि जिंगबुआन को पुरुष पसंद नहीं है, अन्यथा जिंगबुआन के आसपास होते हुए कौन पत्नी से विवाह करना चाहेगा? अपनी बात समाप्त करने के बाद तेई जुबान ने एक छुपी हुई मुस्कान के साथ अपनी शराब छुपा ली। सॉन्ग जिजेन कह सकता है कि वह नहीं पी सकता, वह नहीं पी सकता। उसके भाई, दादा और दादी ने बहुत चिल्लाया और तेई जुबान ने उसे जाने दिया। जुआंगयुआन लैंग ने उदासीनता से अपनी आस्तीनें हिलाई। नंबर 2 और तानहुआ ने अब उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। झेंग वूजी ने कहा, जिंगबुआन, आपने जियांगे की परीक्षा कैसे पास की? तेई जुबान ने भौहें सिकुड़ी। उसके घुटनों में अवचेतन रूप से दर्द हो रहा था। उसने अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया और आलस से कहा, घुटने टेको जब तक उसे बुरा न लगे। बहुत बढ़िया, सॉन्ग जिजेन ने गंभीरता से कहा, मैंने भी ये तरकीब सीखी है और मैं किसी दिन अपने पिता से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। ईमानदार झेंग वूजी ने उस पर हंसते हुए कहा, सीखने का क्या फायदा है? तुम्हारे पास तो कोई लड़की भी नहीं है जिसे तुम पसंद करते हो। बकवास, एक आदमी को पत्नी न होने की चिंता क्यों करनी चाहिए? ओह, नंबर 2 ने तन्हुआ से 3 इंच नीचे देखा। बड़ा वाला कहाँ है? तेई जुबान ने शराब थूक दी, 2 बार खांसा, मेज पर जोर से मारा और हंसने लगा।